શિક્ષણ અને વ્યવસ્થાના માનવીયકરણમાં સમાજની ભૂમિકા આ વિષય ઉપર જીવન વિદ્યાના પ્રબોધક માનનીય શ્રી સોમભાઈ ત્યાગીને સાંભળવા અને સમજવા માટે પધારેલા આપ સૌનું સમર્થ પરિવાર વતી હું સ્વાગત કરું છું. આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું, પણ અહીંયા કોઈ સ્થૂળ દીપક નથી અને સ્થૂળ દીપક પ્રગટાવવાનો કોઈ કાર્યક્રમ પણ નથી. આજે તો આપણે ભીતરના દીપકને જ્ઞાન અને સમજણરૂપી દીપકથી પ્રગટાવવાની વાત છે. એટલે બધા કમરથી થોડા સીધા બેસીએ, આંખો બંધ કરીએ અને જે ગીત વાગી રહ્યું છે, પ્રાર્થના વાગી રહી છે, એના શબ્દો ઉપર આપણું ધ્યાન લઈ જઈએ. આંખો બંધ, ઊંડો શ્વાસ ભરો અને છોડો અને ધ્યાન શબ્દો ઉપર. ज्ञान के दीप जलाए, आशा की उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की हवाएं नए राग गाने लगी है. आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए. ज्ञान के दीप जलाए, सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहां से भी गुजरे उजाले रचाए. ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए. ज्ञान के दीप जलाए. ઓમ શાંતિ. નમસ્કાર. જીવન વિદ્યા એ જીવનનો પરિચય કરાવતી એક અમૂલ્ય વિદ્યા છે. આદરણીય એ નાગરાજજી, એમને નર્મદાના ઉદ્ગમ સ્થાન અમરકંટકમાં સાધના વિધિથી અસ્તિત્વ જેવું છે એવું એમને દર્શન થયું. અને આજે આપણે આદરણીય નાગરાજજી માટે કૃતજ્ઞ છીએ કે સમસ્ત બ્રહ્માંડનું અસ્તિત્વનું એમણે જે મધ્યસ્થ દર્શન એના રૂપે અસ્તિત્વનું જ્ઞાન ધરતીની સમગ્ર માનવ જાતિ માટે શિક્ષણ વિધિથી સરળ ભાષામાં, સરળ રૂપમાં ઉપલબ્ધ કરાવ્યું. એ માટે અત્યારે આપણે બધા એમના માટે કૃતજ્ઞ છીએ. જીવન વિદ્યા આપણી સમજણના દ્વાર ખોલે છે.
જીવન વિદ્યા એ સ્વયંના જીવનને જોવાની, જાણવાની, જાંચવાની અને માનવાની સાચી સમજ તરફ આપણને દોરી જાય છે. આપણને આખું જે જીવન જીવીએ છીએ એ દરમિયાન ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને, મને, આપણને બધાને મૂંઝવતા હોય છે. ઘણા બધા સારા કામ કરીએ, સમાજ માટે ઘણું બધા કામ કરીએ, પણ જીવનના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબો અનુત્તર રહી જાય છે. ખરેખર આપણે જીવીએ છીએ કે જીવી રહ્યા છીએ? સુખ શું છે? કોણ આપે છે? આપણે કોને સુખ માનીએ છીએ? આપણને કેટલું સુખ જોઈએ છે? સુખ ક્યાં મળે છે? મુખ્ય વાત જ્યારે જીવવાની વાત આવે છે ત્યારે સંબંધો એ સેન્ટરમાં હોય છે. તો સંબંધો શું છે? સંબંધોનો આધાર શું? સંબંધો મારા સ્વયં સાથેના શું સંબંધ છે? મારા પરિવાર અને સમાજ સાથેના શું સંબંધ છે? જે પ્રકૃતિના હવા, પાણી, ખોરાક એમાં હું જીવી રહ્યો છું, એ પ્રકૃતિ સાથેના મારા સંબંધો શું છે? આ બધી સમજ આ વિદ્યામાં, અસ્તિત્વગત જ્ઞાનમાં આપણને મળે છે. એક પ્રશ્ન કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ ત્યારે આપણે બધા સાંભળતા હોઈએ છીએ વારંવાર કે આપણી પોતાની ઓળખ શું છે સ્વયં માટેની. આ ધરતી ઉપર આવનારું એક બાળક જ્યારે ધરતી ઉપર અવતરે છે, સ્ત્રી રૂપે કે પુરુષ રૂપે, ત્યારે બાળક હસતું હોય છે, ખિલખિલાટ કરતું હોય છે, નિર્દોષ હોય છે, નિષ્કપટી હોય છે, સત્યવક્તા અને નીડર હોય છે, ન્યાયનો ચાહક હોય છે, જિજ્ઞાસુ હોય છે. પણ એ આપણી સાથે જીવતા જીવતા, આપણી સાથે રહેતા રહેતા ક્યારે આ બધા ગુણો ગુમાવી દે છે? એના માટે જવાબદાર કોણ? એક બાળક એના જન્મ પછી જિંદગીના કિંમતી 20 વર્ષ સુધી મા બાપ, શિક્ષક, અધ્યાપકો, યુનિવર્સિટીઓ અને આ સમાજ શિક્ષણ અને જ્ઞાન આપે છે. એમ છતાંય સમાજમાં એના પરિણામો કેમ આપણને દેખાતા નથી? શું આપણે માનવ બનાવી રહ્યા છીએ ખરા? માનવ છીએ એવું કહીએ છીએ, પણ શું આપણું આચરણ એ કેવું છે? નિશ્ચિત છે કે અનિશ્ચિત છે? એક પશુ શું કરશે એનું આચરણ નિશ્ચિત છે. એક વાઘ શું કરશે, એક કૂતરો શું કરશે, એનું આચરણ આપણને બધાને ખબર છે કે એ નિશ્ચિત આચરણ છે. શું માનવ માટે એવું કહી શકાય? માનવ અને પશુમાં મૂળભૂત તફાવત શું? શું પરિવારોમાં શિકાયત મુક્ત, અભાવ મુક્ત, ભય મુક્ત જીવન જીવી શકાય ખરું? સમાજ અને અસ્તિત્વની જે આખી વ્યવસ્થા છે એમાં મારી પોતાની ઉપયોગિતા શું? મારી પોતાની ભૂમિકા શું? હું કેવી રીતે ભાગીદાર બની શકું અને આ ધરતીને વધારે સુંદર બનાવવામાં મારું યોગદાન જીવનકાળ દરમિયાન આપી શકું? લગભગ જીવન વિદ્યા એ એક એવો પ્રસ્તાવ છે કે જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રના પ્રશ્ન હોય એ જ્યારે તમે ગહેનમાં જાઓ છો, એક પણ પ્રશ્ન એવો નથી કે જેનો અનુત્તર તમને હોય. સવાલ એ સમજણને જીવનની અંદર પ્રગટાવવાનો છે. અને આખી જેમ એક એન્જિનિયર બનવા માટે, એક ડૉક્ટર બનવા માટે 20 વર્ષ સુધી ભણવું પડે અને જીવનને સમજવા માટેના કોઈ કોર્સ જ આપણી પાસે અત્યારે નથી. જીવન વિદ્યા એક એવું અધ્યયન છે જેમાં આખું વર્ષ, 2 વર્ષ સુધી તમે ડિટેલમાં અધ્યયન કરી શકો. એનો પરિચય 8 દિવસની શિબિરમાં થતો હોય છે, જે 22 તારીખથી 29 તારીખ ભરૂચ મુકામે થઈ રહ્યો છે. અને સોમભાઈ અહીંયા સુરત ભરૂચના કાર્યક્રમ માટે આવી રહ્યા હતા, પણ સમર્થ પરિવારના ત્રણેય ભાઈઓના મનમાં એમ થયું કે ગુજરાતમાં જ્યારે સોમભાઈ આવી રહ્યા છે ત્યારે એમની ઉપયોગિતા આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાં કેવી રીતે લઈ શકાય અને આપણને એ આ બધા પ્રશ્નોમાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે, એટલે આપણે આ 3 કલાકનું એક સેશન ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે જેમાં શિક્ષણ અને વ્યવસ્થાના માનવીયકરણમાં જે સમાજની ભૂમિકા છે એના ઉપર કેટલુંક ચિંતન થશે. તો આ કાર્યક્રમમાં, સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં માણવા આમંત્રણને માન આપીને જે આપ સૌ પધાર્યા છો, સૌનું સ્વાગત છે. અને સોમભાઈને વિનંતી કરું છું કે આપણો કાર્યક્રમ વિધિવત રીતે શરૂ કરે. આપણે સોમભાઈનું તાલીઓથી સ્વાગત કરીશું.
बोनी भाई मेरा परिचय कुछ आगे है, हो गया ना? नहीं नहीं, मैं मेरे मुंह से बोल दूंगा तो मैं ऐसा आपके बीच में फिर कनेक्ट फील करूंगा। तो मेरा 89 का इंजीनियरिंग पास आउट रहा, 3 साल जॉब वगैरह किया। जब तक इंजीनियरिंग नहीं किए थे तो हम लोग को लगता था कि इंजीनियरिंग कोई बड़ी चीज़ होती होगी। जब जॉब में गए पता चला कि ठीक है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, तो कुछ उसमें खास बात लगी नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, तो छत और रोटी के लिए पहले भी नहीं सोचते थे। किसान यदि उस तरह से देखें, शहर में एक आदमी रहता है, उसको फ्लैट का किराया देना होता है, यदि सैलरी नहीं आएगी तो अगले महीने का खाना भी नहीं आएगा, किराया भी नहीं आएगा, तो ज़्यादा इनसिक्योर होता है। यदि ज़िंदगी की सिक्योरिटी, ज़िंदगी को लेके सिक्योरिटी के बारे में सोचें तो शायद एक गांव का युवा ज़्यादा सिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको पता है कुछ करूं नहीं करूं, छत और रोटी तो उपलब्ध है। तो मुझको लगता है कि शायद अपने परिवार का कोई संस्कार रहा होगा और ये किसान के बेटे होने का एक आत्मविश्वास अपने में रहा होगा। तो ज़िंदगी में कुछ, ज़िंदगी को किसी बड़े रूप में देखा था, कुछ बहुत मीनिंगफुल जीने के रूप में देखा था। लेकिन जब जॉब में आए तो ऐसा नहीं लगा कि जिन सपनों को लेके ज़िंदगी की शुरुआत की है, मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा आप में से भी अधिकांश लोगों ने कई बार महसूस किया होगा। ज़िंदगी के सपनों ने जितना सुख दिया, हम ज़िंदगी को लेके सपने देखते हैं ना, 20 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो ज़िंदगी के सपनों ने जितना सुख दिया, जब वो सपने साकार हुए तो उसने, उसकी हकीकत ने उतना सुख नहीं दिया। कितने लोगों को ऐसा लगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या निकला? जो सपने देखे थे वो तो पूरे हो गए। कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई आईएएस हो गया, किसी का बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया, बच्चों की शादी हो गई, जैसा आप चाहते थे उससे ज़्यादा बेहतर बच्चे इस्टेब्लिश हो गए। फिर भी हम खुश क्यों नहीं हुए? इसका मतलब हमको सपने देखना आता है कि नहीं आता है? वो किसी दिन वो ऊपर वाला मिल गया और वो पूछ दिया, बोल बेटा क्या चाहिए? आपने तो इतना ही बोले, यार एक गाड़ी दे दे, एक मकान दे दे। वो हो सकता है कुछ बहुत बड़ा दे सकता था, लेकिन हमने मांगा ही बहुत छोटा, तो देने वाला भी क्या करता। तो दोस्तों, मैं बात शुरू करने से पहले आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम किसी भी सभा में जाते हैं तो हमको पता है जो टाइम दिया होता है उसके 1 घंटे बाद शुरू होती है। तो जोरदार तालियां आपके लिए। तो 9 बजे का टाइम मुझको दिया गया था और 9 बजे के पहले यहाँ सभा चल रही थी। इसके लिए आप सबको बहुत खूब खूब धन्यवाद। एक बहुत छोटी सी जगह में इतने सेंसिटिव लोग हैं और किसी सही बात को, नई बात को सुनने के लिए हम इस कदर तैयार हैं। इसके लिए आपको, आपकी पूरी परंपरा को, मैं गुजरात में लगभग 12-13 में भी काफ़ी आया, फिर कुछ संयोग बना, बीच में कुछ ब्रेक हुआ, लेकिन उस समय में भी जो कुछ मैंने गुजरात में देखा तो मुझको दिखाई दिया कि परिवार परंपरा यहाँ बची है, समाज यहाँ बचा है, एंटरप्राइजिंग लोग एंटरप्राइजिंग हैं। तो बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं जो हमारी परंपरा से हमको मिली हैं। लेकिन हो सकता है आप भी ये महसूस करते होंगे कि जैसे जैसे ये मॉडर्निटी, ये मॉडर्न एजुकेशन, ये मॉडर्न लिविंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी जड़ें, परिवार की जो जड़ें थी, समाज के रूप में जो जड़ें थी, और एक एंटरप्राइजिंग होना ज़्यादा बड़ा काम है, धीरे धीरे वो बदलने लगता है ना। कोई नौकरी बड़ा काम है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करेंगे। जो मैं चर्चा आपके सामने कहना चाहता हूँ, लगभग हम 8 दिन का एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं, जिसका निचोड़ मैं आपके सामने 2-3 घंटे में कहने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों को 8 दिन के बाद ये लगता है कि बात समझने के लायक है, तो वो अपने एफर्ट से लगभग 100 डेज़, 180 डेज़ का आगे प्रोग्राम रहता है, फिर वो अपने एफर्ट से सामाजिक विधि से उसको करते हैं।
ऐसा देश भर में अलग अलग सरकारों के साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, समाज के साथ जुड़ के हम बहुत सारा काम करते हैं। और ये आपको मुझको लगता है कि मैं शेयर कर दूं कि ये काम हम अपने संबंध की फीलिंग के आधार पे करते हैं कि हमारा आपस में कोई संबंध है। हम घर में भाई भाई बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो बिल बना के नहीं देते हैं ना। अपने दोस्त के साथ बात करते हैं तो बिल बना के नहीं देते हैं। तो दोस्तों, पूरे देश में इस काम को हम उपकार विधि से करते हैं, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के करते हैं। जितना संभव, ऐसा मैं ही नहीं, ऐसे हमारे सभी मित्र ऐसा ही करते हैं। तो इस काम में हमारे सभी मित्र IIT IIM जो कुछ ऊंचा ऊंचा हो सकता है सब देख लिया, कर लिया, उसका खोखलापन देख लिया, फिर लगता है कि नहीं, कुछ और करने सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे सारे मित्र अपने अपने ब्रेड एंड बटर के साथ, अपनी अपनी लिविंग के साथ हैं। देश भर में जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो सरकार में हो, समाज में हो, जहाँ लगता है कि हाँ मानवता को खड़ा किया जा सकता है, वहाँ मिलके उनके साथ में मानवता को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आज की बात को मैं इस संदर्भ के साथ शुरू करता हूँ कि समाज के लिए सरकार है या सरकार के लिए समाज। क्या लगता है? एक समय ऐसा रहा होगा ना जब सरकार नहीं रही होगी, समाज ही रहा होगा। ऐसा रहा होगा कभी? फिर सरकार क्यों बनी होगी? सरकार बाद में आई होगी कि सरकार समाज बाद में आया होगा? सरकार बाद में आई होगी, है ना। तो सरकार क्यों आई होगी? माइक है बोनी भाई? कुछ माइक बीच में दे दो। देखिए, समय कम है, लेकिन इस बात को करने का तरीका यही है कि हम संवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तरफा नहीं होता है। फिर भी किसी को शेयर करना है तो बीच में माइक दे दीजिए। पहले समाज आया, बाद में सरकार आई। सरकार आने के बाद समाज को कुछ बदलने के लिए ही सरकार बनाया गया। नहीं तो भी अभी प्रश्न ये है कि सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा होगा, जनसंख्या आगे बढ़ी होगी, तो सबको शिक्षा मिले, सब स्वस्थ रहें, रोड भी ठीक हो, गाड़ी भी ठीक हो, तमाम चीज़ों के लिए कुछ योग्य लोगों को चुना गया होगा और समाज ने उनको पैसा दिया। सरकार पैसा कमाती है कि समाज पैसा कमाता है? समाज पैसा कमाता है। सरकार कोई पैसा नहीं कमाती है, ठीक है। तो समाज मेहनत करके पैसा कमाता है, उसमें से एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता है। समाज के ही कुछ लोगों को चुना जाता है जिनको किसी काम के लिए हम योग्य मानते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम समाज का सेवा करो और तुम्हारे घर की, तुम्हारे चूल्हे की चिंता हम करेंगे और तुम्हारी योग्यता से तुम समाज की चिंता करो। कैसा लगता है? इसमें कोई गलती है? ये ठीक लगता है कि नहीं? तो ये बात ऐसी है। अभी कैसा है? अभी क्या लगता है, समाज के लिए सरकार है कि सरकार के लिए समाज? सरकार के लिए समाज है। बहुत मुश्किल हो गया। हाँ वो हाँ बस तो आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि सही अर्थों में देखा जाए तो हम जब एक सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, यदि समाज बहुत अवेयर होगा, समाज अपने में कॉन्फिडेंस के साथ होगा, समाज अपने में क्लैरिटी के साथ होगा, तो समाज ही सरकार होगा। समाज के प्रतिनिधि ही सरकार के रूप में काम करते हैं। दोनों के बीच में कंधे से कंधा मिला के चलने की मानसिकता होगी, या दोनों के बीच में या सरकार की समाज पे शासन करने की मानसिकता होगी। एक व्यापारी को जो अपना मकान गिरवी रख के 10 लोगों को रोजगार देने के लिए सालों अपनी मेहनत करता है, एक रोजगार क्रिएट करना कैसा काम है वो आपसे बेहतर कौन समझेगा।
तो जो व्यक्ति रोजगार क्रिएट करता है, 10 लोगों के लिए काम क्रिएट करता है, 1000 लोगों के लिए काम क्रिएट करता है, उसका सम्मान होने की आवश्यकता है? या तमाम कागजी कार्रवाई में कहीं ना कहीं, है ना, वो हमेशा डरा हुआ रहे, कोई इनकम टैक्स वाला आएगा, कोई सेल टैक्स वाला आएगा, कोई और आएगा? ये आपस में विरोध क्यों? अपने ही देश में क्यों हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये सही काम करने का तरीका भी निकले और सही काम करने वाले का सम्मान भी हो? यहाँ से जब मैं बात को शुरू करता हूँ तो फिर नीचे उतरना शुरू करता हूँ, तो गाड़ी मेरे लिए कि मैं गाड़ी के लिए? मकान और जिंदगी दो बातें हैं। मकान और जिंदगी दो बातें हैं। तो मकान किराए पे रह जाए, यदि दोनों में से ऑप्शन तो क्या है? जिंदगी भी अपनी हो जाए और मकान भी अपना हो जाए, बेस्ट ऑप्शन तो यही है। जिंदगी भी अपनी हो जाए और मकान भी अपना हो जाए, बेस्ट ऑप्शन तो यही है। यदि दोनों में से एक ऑप्शन है तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? मकान किराए पे रहे, जिंदगी अपनी हो जाए, या मकान अपना हो जाए, जिंदगी किराए पे रह जाए? है मकान किराए पे रह जाए, जिंदगी अपनी हो जाए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ओह, सारी जिंदगी चाहते हैं, सारी जिंदगी चाहते हैं। और जिंदगी का एड्रेस ही गलत हो जाए, जिस जगह मुझको पहुंचना है उसका एड्रेस ही गलत हो जाए, तो क्या वहां पहुंचेंगे? जिस जगह मुझको जाना है उसका एड्रेस ही ठीक नहीं है, तो क्या वहां पहुंच पाएंगे? नमस्कार संजय भाई। हाँ जी, चलो एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे? बोले गुजरात में आके ना आप ऐसी बातें मत करो। हाँ जी, खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे? ऑप्शन वोटिंग कर लेते, वोटिंग कर लेते। खाने के लिए जी रहे, देखिए एक भी हाथ नहीं उठा है। जीने के लिए खा रहे, एक भी हाथ नीचे नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खाना कुछ और है, जीना कुछ और है। जीने के लिए खा रहा हूं, इसका मतलब खा पी के अब जीने की तैयारी है। तो जीने का एड्रेस होगा तो जीने तक पहुंचूंगा, नहीं तो खा लूंगा और फिर रेस्ट करके फिर खा लूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जीना तो हम चाहते हैं, और कैसा जीना चाहते हैं? जीना क्या होता है? कुछ लोग शेयर करेंगे, जीना किसको बोलेंगे? बोलिए बोलिए, जीना किसको बोलेंगे? हाँ जी, माइक दीजिए दौड़ के। जिस तरह जीने में आनंद हो, उत्साह हो, उसको जीना बोलते हैं। और पीछे माइक दीजिए। कोई समस्या ही ना हो, समस्या ही ना हो, सुख ही सुख हो। सुख ही सुख। ऐसा कितने लोग जी रहे? और हो सुनिश्चित सामाजिक जीवन के लिए हमें जीना चाहिए और इसीलिए हम जीते हैं। हाँ, भाषा में तो कोई कमी नहीं। फिर भाषा आ गई, धीरे से भाव भी आ जाएगा, पहले भाषा ही आती है। तो ये सुखद है। तो ये बात अभी, हाँ जी बोलिए। दूसरों की हेल्प करना वही जीवन है। ओह, दूसरे का ना चुगली करने का बहुत मन है।
तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए आओ चुगली चुगली खेलेंगे, तो हेल्प भी समझ में आया नहीं। अधिकांश, मैं यहाँ की बात नहीं कहता कुछ, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैक्सिमम बुजुर्ग बहुत शिकायतों के साथ पाए जाते हैं। जिंदगी भर उन्होंने जितने लोगों को हेल्प किया, अब उनसे वापस उनको वो रिस्पांस नहीं मिलता है जिस रिस्पांस की उनको अपेक्षा है। तो अधिकांश बुजुर्ग बहुत शिकायत के साथ होते हैं कि सब खुदगर्ज हैं और किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा भी अंतिम समय पे आके निष्कर्ष निकलता है। और माँ बाप भी किसी समय तक, जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक मंदिर मस्जिद दरगाह में बच्चों की मन्नत मांगने जाते हैं, और किसी पॉइंट पे उनको लगता है कि ये पढ़ लिख के अपना रास्ता शुरू करें तो हम भी अपनी ज़िंदगी शुरू करें। तो समय समय पे हमारी मानसिकता और हमारी धारणाएं बदलती हुई देखी जाती हैं। तो चलिए आज मैं थोड़ी सी बात आपके सामने शेयर करता हूँ। मुझको लगता है कि जो गैप है एक बार उसको पहचानने की ज़रूरत है। गैप हम पहचान लेंगे तो उसको भरने की कोशिश भी करेंगे। विशेष रूप से जो टॉपिक हमने बहुत सारे चर्चाओं के बाद, तो मूल में जहाँ से हमने बात शुरू की कि जंगल में आदमी रहता होगा, जनसंख्या बढ़ी होगी, धीरे से उसने समाज का रूप ले लिया होगा, समाज के व्यवस्थित चलने के लिए हमने फिर कुछ सरकार नाम की चीज़ निकाल ली होगी। तो फाइनली ये हुआ कि समाज का अपना कोई कार्यक्रम है, सरकार का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होगा, समाज का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होगा, परिवार का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होगा। यदि हमारे कार्यक्रम के बारे में हमारी क्लैरिटी नहीं है तो हम एक दूसरे के कार्यक्रम में घुस गए हैं। अभी सरकारों को देखो तो बेसिकली समाज का सारा कार्यक्रम सरकार ने ले लिया है। बच्चे पैदा होने से लेके, और बच्चे को वो फिर पैदा होते ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें कुछ आर्थिक मदद आती है, फिर वो आंगनबाड़ी में उसको खाना पीना आता है, फिर वो आगे और चलता है तो साइकिल से लेके और वृद्ध मुख्यमंत्री वृद्ध तीर्थ यात्रा योजना, ये वृद्धों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना सरकार का काम है कि अपने उसके खुद के परिवार के बच्चों का काम है कि समाज का काम है ना? तो जब बहुत सारी वो विवाह योजना, तो अभी छत्तीसगढ़ में तो विवाह कराते हैं, लड़की की शादी पे भी, शादियां भी सरकार कराती है। आप पैदा भर कर दो, बाकी सारा काम सरकार का है। और आपके वोट की तो ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, वोट बैंक तो दूसरा होता है ना? ये जो पढ़ा लिखा, अभी लगभग मेट्रोज में वोटिंग परसेंटेज 50% तक आ गया है, और पॉलिटिकल पार्टी जो जीतेगी उसको 20% वोट मिलता है तो वो जीत जाएगी। तो 100 में से 20% पे एक पार्टी इलेक्ट होके आ जाती है। तो मैं सारी बातों को कहने का मेरा आशय ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, हमारे, है ना, हम समाज और परिवार के रूप में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। यदि पिछले 30 साल की जर्नी देखा जाए, पिछले 40 साल की जर्नी देखा जाए, तो कुछ उपलब्धि हुई है कि नहीं हुई है? पिछले 40 साल में देखें तो कुछ उपलब्धि हुई है कि नहीं हुई है? बहुत उपलब्धि हुई है। सड़कें ठीक, पहले सड़क ढूंढनी पड़ती थी, ठीक है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, फ़ोन अच्छे हो गए हैं, घर अच्छे हो गए हैं, है ना, तमाम सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है शायद जहां और सोचने की आवश्यकता है। तो हमारे पिछले लोगों ने किन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया, मेहनत किया, उसको पूरा कर दिया। हमारी आपकी भी कोई जिम्मेदारी होगी। तो हमारी आपके लिए हमारी सबकी योग्यताएं और हमारी रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यदि हम भी किन्हीं लूप होल्स को पहचानेंगे, हो सकता है हम में से एक एक आदमी बहुत सामर्थ्यवान है। आप तो समर्थ परिवार पहले से ही चलाते हैं, है ना, हो सकता है हमारी कोई योग्यता होगी, हो सकता है आपकी कोई बड़ी योग्यता होगी और कोई बड़ा अवसर और कोई बड़ी स्थिति दिखाई देगी, हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसके दो पार्ट हैं। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सामान्यतः एक कार को तैयार करने में कितना समय लगता है और एक कार कितने साल सर्विस देती है। एक कार को तैयार होने में कितना समय लगता होगा?
है? अच्छा, आजकल तो इतना जिस हिसाब से तैयार होती है तो इतना छोटा तो मैंने नहीं सोचा था, मैं तो एक आध महीने बोल के काम चला लेता था। ये तो 1 ही मिनट बोल रहे हैं, 1 मिनट 1 कार। ठीक, तो ये ठीक है कि ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यदि हम हफ्ता भी मान लें, हफ्ते में 1 कार आ रही है, लेकिन 15 साल 1 कार डिलीवर करती है, 15 साल 1 कार सेवा देती है। एक आदमी को तैयार होने में कितना समय लगता है? एक आदमी को तैयार होने में कितने साल लगते हैं? हाँ, डिपेंड करता है, आजकल तो बुढ़ापे तक भी ना हो ऐसा हो ही सकता है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि एक आदमी लगभग 20-25 साल तक एजुकेशन पूरी करता है, 5-1 साल किसी इंडस्ट्री में किसी भी जगह में अपने रोजगार में काम करता है, 30 तक आते आते उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, फिर आगे उसके लिए काम करता है। तो मोटी बात कहें तो आदमी एक ऐसी चीज़ है कि 30 साल तक 30 साल उसको तैयार होने में लगता है और 30 साल वो डिलीवर करता है। दोस्तों 50-50 का रेशो है। यदि आदमी के बारे देखें तो एक आदमी को तैयार होने में 30 साल लगता है और लगभग 60 साल की एज तक एक आदमी इफेक्टिवली डिलीवर कर पाता है, कम ज़्यादा। तो आदमी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी पूरी आयु का लगभग 50-50 का रेशो है कि उसका तैयार होना एक बड़ी घटना है। क्या लगता है तैयार होना? यदि एक आदमी के तैयार होने की बात करें तो तैयार होने की बात करें तो इसका नाम शिक्षा है, और उसको जब वो डिलीवर करता है तो वो किसी सिस्टम में उसको डिलीवर करता है, उसका नाम व्यवस्था है। तो एक आदमी को तैयार करने का नाम व्यवस्था है, शिक्षा है, और एक तैयार आदमी को किसी सिस्टम में हम यूज़ करते हैं या वो अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करता है, उसका नाम व्यवस्था है। इस तरह से 2 भाग में हम आदमी की ज़िंदगी को देख सकते हैं कि शिक्षा पूर्वक वो तैयार होता है और किसी व्यवस्था में वो काम करता है। क्या काम बड़ा है इसमें से? आदमी को तैयार करना ज़्यादा बड़ा काम है या उसको इस्तेमाल करना या उसका किसी व्यवस्था में योगदान देना ज़्यादा बड़ा काम है? महत्वपूर्ण काम क्या है? महत्वपूर्ण काम क्या है? उसका तैयार होना बड़ा काम है ना? एक आदमी यदि ठीक से तैयार हो गया तो वह एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छा एंटरप्राइजिंग, एक अच्छा देश का नागरिक, एक अच्छा जिम्मेदार समाज का नागरिक होगा। और यदि एक व्यक्ति ठीक से तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा? नेता बनेगा तो देश को बेच खाएगा, ब्यूरोक्रेट होगा तो उसका है ना नेताजी के साथ हो जाएगा, है ना। एक आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, उतना ही कमज़ोर इंसान हो सकता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, उतना ही कमज़ोर इंसान हो सकता है। एक व्यक्ति टेक्निकली बहुत साउंड हो सकता है लेकिन पति के रूप में उतना ही फेलियर हो सकता है। कैसा लग रहा है? ये लास्ट वाला कैसा लग रहा है? बोले ये तो काफी नजदीक लग रहा है। पोषक भाई कहाँ गए? हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र यहाँ। देखिए गुजरात में आत्मीयता तो बहुत है। मेरे को भी जब गुजरात आना रहता है ना तो अलग से खुशी होती रहती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट समझ में आ रही कि यार आदमी का तैयार होना एक बड़ी घटना है। एक कार को तैयार करने में हम जितना ध्यान देते हैं, जितना प्रिसाइज होते हैं, जितना टेक्निकली साउंड होते हैं, एक अच्छा मकान बनाने के लिए जितना हम ध्यान देते हैं, जितने कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं और कंसल्टेंसी का पैसा देते हैं, एक मकान में कितने कंसल्टेंट आ जाते हैं। एक आर्किटेक्चर से लेके और इंटीरियर वाले से लेके और वास्तु वाले से लेके और किचन का डिज़ाइन इंटीरियर से लेके एक पर्दे वाला और लैट्रिन वाला और बाथरूम वाला और उसकी टाइल और इसका है ना। एक आदमी की ज़िंदगी बनाते हैं तो उसकी ज़िंदगी में कितने लोग आते हैं?
कितने लोगों को से हम कंसल्ट करते हैं? एक मकान बनाते हुए हम ज़्यादा सीरियस हैं? एक कार बनाते हुए हम ज़्यादा सीरियस हैं? एक बच्चे की जिंदगी बनते हुए तो बच्चे पैदा हमने किए थे, किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को आउटसोर्स कर दिया है, तुम देख लेना हम कमाने में बिजी हैं, हम पैसा कमाने में बिजी हैं। हमने अपने बच्चों की जिंदगी को आउटसोर्स किया है, दूसरों को जिम्मेदारी दे दी है कि तुम इनको देख लेना, हम लोग पैसा कमाने में बिजी हैं, है ना। सही अर्थों में देखा जाए, मकान बनता है तो कितना ध्यान देते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई हम बहुत नोइंगली कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर हमने मान रखा है कि ये तो ऐसा हो ही जाता है। कैसा हो जाता है? एक छोटी सी घटना शेयर करता हूँ। आजकल शादियाँ होती हैं ना, तो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले सब कर देते हैं। पहले लोग काफ़ी बिजी होते थे अपने घर की शादियों में, लेकिन आजकल घर के लोग काफ़ी खाली रहते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अपनों से बात करने का समय मिल जाता है। तो मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि हमारे परिवार में एक शादी होती रही और हम लोग किसान परिवार से हैं, दिल्ली के पास में हमारा गांव है, और हमारे चाचा जी दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करने के लिए आए, और परिवार के लोगों में बड़ा जज्बा था कि यदि एक भाई दिल्ली आ गया है तो दूसरे भाइयों के बच्चों को दिल्ली ले आए और उन सबको पढ़ा दे और हमारा परिवार आगे बढ़ जाए। तो हमारे चाचा जी ने बड़ी मेहनत की। 1-2 कमरे का मकान होता था, उसी में भाइयों को बच्चों को भी रखना, उसी में सैलरी भी कम ही होती थी, है ना, उसी सैलरी में उनको भी पढ़ाना, अपना घर भी चलाना। किसी एक शादी में हम लोग टेंट के पीछे बैठे हुए, किसी बात पे चाचा जी बड़े उदास हो गए और उनकी आंख में आंसू आ गए, और आंसू आके बोलते हैं कि यार हमारा घर असफल हो गया। तो मैंने पूछा जी कैसे असफल हो गया? जितनी सैलरी आपको मिलती है, जितनी सैलरी पे आप रिटायर हुए हो, उससे ज़्यादा सैलरी पे बच्चे जॉब में चले गए हैं, गांव की प्रॉपर्टी गांव में है, शहर में 10 मकान हैं, जिनको कार चलानी आती है सबके पास कार है ही है। ओह, बोले ये बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आपस में प्यार नहीं रहा। क्या नहीं रहा? प्यार नहीं रहा। तब तक मैं जॉब से रिज़ाइन करके और इस तरह की ज़िंदगी में आ गया था और इस तरह के बहुत कुछ काम शुरू कर दिया था। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। मैं कहा देखो, जब हम पढ़ते थे आप ढूंढ के फिजिक्स का अच्छा वाला टीचर जिसके पास बच्चे लेने की गुंजाइश नहीं होती थी, आप अप्रोच लगा के हमारी ट्यूशन उससे लगवाते थे। तो फिजिक्स का सबसे अच्छा टीचर, केमिस्ट्री का सबसे अच्छा टीचर, मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा टीचर आप ढूंढते थे, और वो नहीं भी लेता था तो किसी की अप्रोच लगा के आप उससे हमारी ट्यूशन लगवाते थे। सुबह 4 बजे हमको पढ़ने के लिए उठा देते थे, रात तक तंग करते थे। ठीक, हम प्यार से रहें इसके लिए आपने कौन सी ट्यूशन लगवाई थी? कि हमने फिजिक्स की ट्यूशन की थी, केमिस्ट्री की थी, इंग्लिश की थी। तो मेरे को फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, ट्यूशन आती है, इंग्लिश आती है। प्यार से रहे इसके लिए तो आपने कोई कोचिंग नहीं करवाई थी, वो हमको आता भी नहीं है। बोले है प्यार के लिए कोई कोचिंग होती है? प्यार से तो रहते ही हैं। ऐसा मेरे घर में होता है कि आप सब भी ऐसे ही मानते हो? हम सब ऐसे ही मानते हैं कि फिजिक्स की कोचिंग होती है, केमिस्ट्री की होती है, इंग्लिश की होती है, प्यार से रहने की कोई कोचिंग होती है। पिछले 15 सालों में हमने बहुत स्ट्रगल की डिफरेंट स्टेट के एजुकेशन सिस्टम्स के साथ, क्योंकि वो जिंदगी को सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं। वो इंग्लिश को सब्जेक्ट मानते हैं, वो इंग्लिश को एजुकेशन मानते हैं, फिजिक्स को एजुकेशन मानते हैं, केमिस्ट्री को एजुकेशन मानते हैं, इंजीनियरिंग को एजुकेशन मानते हैं, मेडिकल साइंस को एजुकेशन मानते हैं। जिंदगी भी एजुकेशन है, इसको नहीं मानते। ये जिंदगी के बारे बात करना ये धर्म वालों का काम है, अध्यात्म का काम है, ये समाज का काम है, ये एजुकेशन का काम ही नहीं है। ये एजुकेशन नहीं होती है। वो गलत नहीं है, क्योंकि जब हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो एजुकेशन एक निश्चित वस्तु है, एक उसका नियम है
लेकिन जब हम आदमी के बारे में क्लासरूम में बात करेंगे तो हिंदू धर्म से लाएंगे, मुस्लिम धर्म से लाएंगे, सिख से लाएंगे, हिंदू से लाएंगे तो मुस्लिम विरोध करेगा, मुस्लिम से लाएंगे तो दूसरा विरोध करेगा, जैन से लाएंगे तो बौद्ध विरोध करेगा, कहेगा फिर मेरी वाली लेके आओ। इसलिए हमने ये किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए धर्म के मानव के बारे में कोई चर्चा एजुकेशन में नहीं होगी। जबकि एजुकेशन की आवश्यकता किसको है? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को तो एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी को कैसे जीना है, सोचने समझने का सही तरीका कैसा होगा, ये सीखने समझने की जरूरत आदमी की है कि गाय भैंस की है? आदमी की है। और आदमी के सोचने पे हम एजुकेशन में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी के सोचने पे जब भी हम एजुकेशन पे बात करेंगे तो एजुकेशन का भगवाकरण हो जाएगा। इसलिए ग से गणेश बोलना सांप्रदायिक है, ग से गधा बोलना धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए हम ग से गधा पढ़ेंगे और जैसा पढ़ेंगे उसके आजू बाजू खड़े हो जाएंगे। ये एक अपने आप में बड़ी समस्या थी। तो क्या हुआ? मटेरियल के बारे हमारी इंजीनियरिंग एजुकेशन है, प्लांट्स के बारे हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन है, मानव के शरीर के बारे हमारी मेडिकल एजुकेशन है। तो बाकी तमाम चीज़ों के बारे हम एजुकेशन पे बात करेंगे, लेकिन जिसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है उसके बारे में बात नहीं करेंगे और नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बात कहाँ करेंगे? उसके बारे में बात घर में करेंगे। देखो बेटा, झूठ, तुम दोनों भाई बहनों, झूठ नहीं, वो आपस में झगड़ा नहीं करना है। तुम दोनों भाई बहन हो, आपस में झगड़ा नहीं करना है। तो बच्चों को समझ में आ गया कि झगड़ा किया जा सकता है। पहले पता नहीं था, आपने बताया। ठीक? तो जिस तरह की प्रीचिंग हम घर में कर रहे हैं ये अब नहीं चलेगा। पहले थोड़ा बहुत इसका प्रभाव चल गया, अब साइंस के युग में, लॉजिक के युग में अब ये प्रभाव नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, पिछले दिनों कम से कम दिल्ली में एक बड़ी सफलता मिली कि कम से कम हैप्पीनेस करिकुलम के नाम पे हैप्पीनेस एक सब्जेक्ट के रूप में क्लास 1 to 8 दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में हम इंट्रोड्यूस कर पाए। तो दिल्ली में 1000 स्कूल हैं, उसमें लगभग 50-60,000 टीचर्स हैं, 16 लाख बच्चे हैं। तो 1000 स्कूल में क्लास 1 से 8 तक हैप्पीनेस एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है ना, उसके लिए टीचर्स को तैयार करने का प्रयास जारी है। 9 से 12 तक एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है। 8 तक के बच्चे को ये समझ में आ जाए कि खुश रहना मेरी ज़रूरत है, खुश रहना, वो खुशी को समझता है। तो एक आदमी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके अपने लिए क्या है, एक आदमी की कमाई उसके लिए खुद के लिए क्या है, एक आदमी के लिए खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? खुश रहना। मुझको खुश रहना आता है ना, मेरी खुशी दूसरे से प्रभावित नहीं होती, मेरी खुशी मेरे साथ है। तो दिल्ली एजुकेशन में हमने इसको हैप्पीनेस क्लास को 3 फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। अब जब एकेडमिक्स में लाना होता है तो थोड़े से शब्द घड़ने होते हैं। तो एक को बोला सेंसरी, एक को मोमेंट्री हैप्पीनेस, डीपर हैप्पीनेस एंड कंसिस्टेंट हैप्पीनेस, है ना। ये जो फाफड़ा डोकला है ना, ये मोमेंट्री हैप्पीनेस। संबंध में जो सुख है अपनों के साथ जब हम जीते हैं उसको डीपर हैप्पीनेस, थोड़ी लंबी है ना। खाखरा फाफड़ा खाते समय उस समय जीभ पे अच्छा लगता है और 10 मिनट के बाद बेरोजगारी शुरू हो जाती है, अब सुख कहाँ से लूँ। तो ये संबंध का जो सुख है ये उससे डीपर है। और कंसिस्टेंट हैप्पीनेस है, इसका मतलब है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मेरी मानसिक स्थिति ही ऐसी हो जाती है, हो सकती है जब मैं हमेशा खुश रहता हूँ, जहाँ कोई समस्या नहीं है, जहाँ सभी समस्याओं के मेरे पास समाधान है, मैं किसी ऐसी जगह में रहता हूँ, मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो जाती है। तो है ना, यदि मैं बाई एजुकेशन 10 साल 20 साल मेहनत करके एक बढ़िया इंजीनियर हो सकता हूँ, मैं एक बढ़िया डॉक्टर हो सकता हूँ, तो मैं खुश रहने वाला इंसान बाई एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? तो जो बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ उसका मतलब ये है
कि जब हम एटम और सेल को पढ़ते हैं, सेल हिंदू होता है कि मुस्लिम होता है? सेल नास्तिक होता है। सेल, अब यदि सेल हिंदू और मुस्लिम, सेल में हिंदू और मुस्लिम होता, ये हमारा शरीर हिंदू का शरीर हो, मुस्लिम का शरीर हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कहीं भी शरीर होगा तो उसका इलाज करने वाला किडनी का डॉक्टर एक ही रहता है। नहीं, ये हिंदू शरीरों के किडनी का इलाज करने वाला डॉक्टर अलग है, मुस्लिम शरीर के किडनी का डॉक्टर का इलाज करने वाला डॉक्टर अलग है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेल और एटम प्रकृति में बनी हुई कोई चीज है और वो सबके लिए एक जैसा है और उसको समझना सबके लिए एक जैसा काम है, मानव भी मैन मेड इकाई है कि नेचर में बनी हुई कोई इकाई है? मानव भी एक नेचर में बनी हुई इकाई है। मानव गुफा में था, वो हिंदू था कि मुस्लिम था? जब मानव गुफा काल में रहा होगा तो वो हिंदू था कि मुस्लिम था? मानव ही था। ये ठप्पाकरण बाद में हुआ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानव मानव ही है। पूरी धरती पे कहीं भी मानव उदास होता है तो उसके चेहरे को देख के आप पहचान लेते हो कि ये उदास है। पूरी धरती पे कहीं भी मानव मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट को देख के आप समझ जाते हो कि ये मुस्कुरा रहा है, खुश है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस देश का है, जाति का है, धर्म का है, काल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यदि एटम और सेल को ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है, मैं मेरे बेटे को इंजीनियरिंग किसी साइंस कॉलेज में एडमिशन कराता हूँ तो प्रिंसिपल से थोड़ी पूछता हूँ कि तुम इटालियन साइंस पढ़ाओगे कि जर्मन साइंस पढ़ाओगे कि नेपाली साइंस पढ़ाओगे, ऐसा नहीं पूछता हूँ। क्यों नहीं पूछता हूँ? क्योंकि साइंस साइंस है। साइंस साइंस है, वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। साइंस साइंस है। यदि साइंस साइंस है तो मानव को समझना और ह्यूमैनिटी को समझना भी एक साइंस है और इसको भी क्लासरूम में लाया जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी मुश्किल नहीं है। यदि मैं मेहनत करके एक सुंदर मकान डिजाइन कर सकता हूं और उसको जमीन पे उतार सकता हूं, क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि मैं सुंदर जिंदगी डिजाइन करता हूं और उसको जमीन पे उतार देता हूं? है ना? मकान का डिजाइनर हुआ तो मैं इंजीनियर कहलाया, आर्किटेक्ट कहलाया। हम जिंदगी के डिजाइनर हों, इस बात की जरूरत है। हर माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी का डिजाइनर है। तो कैसे वो योग्यता हमको आ जाए, वो योग्यता हमको बाई एजुकेशन आ जाए, इस बात की ज़रूरत है। अब तक हमने ये सोचा था कि घर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, गाड़ी बेहतर हो जाएगी, एसी लग जाएगा, है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। घर में तो एसी लग गया, रूम का टेम्परेचर तो ठीक है, भाई ये पति पत्नी का टेम्परेचर 101 के नीचे नहीं आता है, इसमें कौन सा एसी लगाओगे? तो यहाँ कोई एसी काम नहीं करता है ना। तो यहाँ वो समझदारी का एसी, जिंदगी वाला एसी लगाना होगा। तो बोलते समय तो आपने कहा कि हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। हर सभा में पूछता हूँ, लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन जब जीने की परिभाषा किया कि फिर जीना क्या है, तो बोले समस्या से मुक्त और खुशी के साथ। उम्र बढ़ने के साथ साथ समस्याएं बढ़ती हुई नजर आती है कि घटती हुई नजर आती है ना? यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ समस्याएं बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिंदगी घटती हुई नजर आती है, इसका मतलब क्या हुआ? हमको जिंदगी की समझ है कि हमने केवल खाने पीने को जिंदगी मान के, खाना पीना, गाड़ी, कपड़े, थोड़ा बहुत घूम घाम लिया। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पर इसके अलावा भी कुछ और है, शायद वो छूटा है। तो मैं जो बात शुरू में आपसे कहने की कोशिश की, यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है, कितनी भी मेहनत कर ले वहां पहुंचेंगे क्या? एक समय आपको याद होगा जब टेलीफोन कुछ ही घरों में हुआ करते थे। कितने लोग उस जमाने के मौजूद हमारे बीच में हैं जब सब घर में टेलीफोन नहीं था, है ना? ये लोग हमारे बीच में वो लोग मौजूद हैं। कार हर घर में होगी ऐसा किसी की कल्पना में भी नहीं था। हर घर में कार होगी ऐसा कल्पना में भी नहीं था।
सबका मकान अपना होता है ऐसा भी कल्पना में नहीं था। तो हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हम बहुत स्ट्रगल, फिजिकल लेवल की एक स्ट्रगल से गुजर के आए और हमने माना कि नहीं, यही जिंदगी है। पहुंच के पता चला इसकी आवश्यकता है और जिंदगी कहीं और है। तो जो मैं बात कह रहा था कि 30 साल एक आदमी को तैयार होने में लगता है, वो एक आदमी को तैयार होने का क्या मतलब है ना। और 30 साल तो शिक्षा हमारे लिए यदि सही अर्थों में देखें तो एक परिवार का सबसे ज्यादा खर्चा क्या चीज में हो रहा है? एक परिवार का सबसे अधिक खर्चा किस बात में हो रहा है? शिक्षा में। यदि परिवार का सबसे अधिक खर्चा शिक्षा में होगा तो राज्य के बजट सबसे अधिक कहां जाए? शिक्षा में जाए। तो एक माँ बाप के लिए शिक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, होने की आवश्यकता। अभी हमने पैसा देके ये मान लिया है कि कोई दूसरा इस काम को पूरा कर देगा। हमने शिक्षा की, हमने अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, शिक्षा में मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी आप ले लो, मैं कह रहा हूं कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी कम से कम उसको समझ देने की जिम्मेदारी, उसको संस्कार देने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि इसको पैसा देके हम दूसरे को आउटसोर्स कर दें। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी है। उसके लिए हमारी योग्यता कैसे विकसित हो, तो मैं इस बात को आपके सामने छोटे में रख दूं। तो देखिए, तो शिक्षा महत्वपूर्ण काम है। यदि दिल्ली में ये किसी को समझ में आया तो पिछले 4 साल से दिल्ली के बजट का 26% एजुकेशन को डेडिकेटेड है। पिछले 4 साल से लगातार 26%, पूरे राज्य के बजट का 26% शिक्षा में गया, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण काम है। और शिक्षा केवल कुछ पेड़ लोग शिक्षा चला लेंगे ऐसा नहीं होगा। शिक्षा बड़ा काम है, शिक्षा पूरे समाज और पूरे परिवार का काम है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान में हमने जैसा शिक्षा का डिज़ाइन बनाया है उसको देखें तो किसी भी प्रोसेस का एक इनपुट सिस्टम है और किसी भी प्रोसेस का एक आउटपुट सिस्टम है। कुछ रॉ मटेरियल है और कोई फिनिश्ड गुड है। यदि शिक्षा में देखें तो रॉ मटेरियल क्या है? शिक्षा के रूप में देखें तो शिक्षा का रॉ मटेरियल क्या है? एक लगभग 2.5 से 3 साल का बच्चा, एक 2.5 से 3 साल का बच्चा, और आउटपुट क्या है? एक 22 से 25 साल का युवा। गलती से मेडिकल में चला गया तो 30 साल गया। सवाल यह है कि किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ठीक है कि नहीं ठीक है, इसको हम कैसे जांचेंगे? आउटपुट कैसा है? तो किसी भी प्रोसेस का यदि आउटपुट ठीक है तो हमको प्रोसेस को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट ठीक है। भी मैं एक नहाने की साबुन बनाता हूँ, साबुन की पैकिंग बढ़िया है, साबुन का रिजल्ट बढ़िया है, मैं क्यों देखने जाऊँ कंपनी में क्या हो रहा है? मेरा काम चल गया। तो इसका मतलब है आउटपुट ही बताएगा कि प्रोसेस कैसा था, कंटेंट कैसा था। तो आउटपुट के रूप में युवा में हम क्या चाहते? एक युवा को देखें, एक माँ बाप अपने बच्चों में क्या चाहता है, इसको देखने जाएं और क्या दिखाई दे रहा है। मैं शॉर्ट में उसको कह देता हूं, हमारे पास लंबा समय होता तो हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते। मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख देता हूं। यदि आदमी को देखें तो उसकी जिंदगी के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि उसकी मानसिकता क्या है, एक दूसरी चीज है कि उसके पास स्किल क्या है। स्किल को क्या बोलते हैं गुजराती में? कौशल। कौशल। तो उसके पास कौशल क्या है और उसकी मानसिकता कैसी है। ये 2 पार्ट किसी भी आदमी की जिंदगी में देखें तो 2 पार्ट है। जैसे खाना बनाना किस में आएगा? मानसिकता में आएगा कि कौशल में आएगा? कौशल में। खेती करना कौशल में आएगा कि मानसिकता में आएगा? कौशल में आएगा, है ना। गाड़ी चलाना कौशल में आएगा, तो फिर मानसिकता में क्या आएगा? थॉट्स। तो दुनिया के सारे लोगों की मानसिकता को किसी फिक्स
कैटेगरी में रखा जा सकता है कि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है? ऑन टेरिटरी। दिल्ली में 5 साल का बच्चा कहता है मामा इट्स माई स्पेस। उसको भी लगता है कि मेरी अपनी स्वतंत्रता है और दूसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, है ना। तो ये जो अपना अपना हो गया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो तरह की चीजें हैं। दो तरह की चीज में मानसिकता का मतलब है धरती के सारे लोगों की मानसिकता को नापने के 3 पैरामीटर्स हैं, है ना। वो पहले से भी कहा गया है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। तो एक पैरामीटर है कि धन को लेके उसका दृष्टिकोण क्या है। मानसिकता का मतलब है दृष्टिकोण। पैसे को लेके उसके क्या विचार है। हाथ का मैल है कि खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। एक ही आदमी आधा घंटे में 2 स्टेटमेंट बोलता है। आधा घंटे पहले बोलता रहता है ये तो हाथ का मैल है, फिर आधे घंटे बाद बोलता है कि खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। अब पता नहीं ये क्या है, ठीक। तो धन के बारे में आदमी का दृष्टिकोण क्या है। दूसरी बात कहें तो स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, ये आदमी के मानसिकता का दूसरा डायमेंशन है। तीसरा डायमेंशन है कि वो मानव दूसरे मानव को और पूरी नेचर के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको वो कैसे देखता है, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। ये 3 चीजें हैं जो धरती के सभी मानव की मानसिकता को क्लियरली डिफाइन करती हैं। इसको पहले से भी कहा गया है। सारे झगड़े संसार में किस बात पे होते हैं। दुनिया के सारे झगड़े जर जोरू जमीन, ऐसे 3 शब्द गुजरात में चलते हैं। जर जोरू जमीन, इसको थोड़ी साहित्यिक भाषा में बोलते हैं कीर्ति कंचन कामिनी। हाँ, तो सारे झगड़े दुनिया में 3 ही वजह से होते हैं। या तो पैसे को लेके होते हैं, या स्त्री पुरुष संबंध को लेके होते हैं, है ना, या यश को लेके, कीर्ति को लेके होते हैं। तो दोस्तों यदि इस संबंध में जाएं, है ना, तो इसको देखने की कोशिश करें। अभी मैं स्किल की बात नहीं करता हूं, है ना, उसको छोड़ देते हैं, केवल मानसिकता की बात करते हैं। तो धन के प्रति मानसिकता, है ना, धन ही सब कुछ है। एक कॉलेज से निकले हुए युवा की मानसिकता को देखें, उसमें हम सभी शामिल हैं। धन ही सब कुछ है। इंद्रियों में सारा सुख है। इंद्रियों में सारा सुख है, धन ही सब कुछ है, और सुविधा ही जीवन शैली है। सुविधा ही जीवन शैली है। अधिकतम आधुनिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और जो भी लेटेस्ट है वो मेरे पास हो जाए, है ना, वही जीवन शैली है। धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली है। समाज में कितने प्रतिशत लोगों की मानसिकता इसके आसपास है, ऐसी है? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत है? 90, 99 तक चले गए। कितने लोगों को लगता है कि 90% से ऊपर है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि 95 से ऊपर है?
ठीक, कुछ के नीचे आए। कितने लोगों को लगता है कि 10 साल बाद ये और बढ़ेगा कि घटेगा, और धीरे धीरे बढ़ेगा कि तेजी से बढ़ेगा? लगभग हम उस तरह। तो दोस्तों, यदि एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है, यदि एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है, तो उसके लिए संबंध महत्वपूर्ण होगा या साधन महत्वपूर्ण होगा? यदि एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है तो उसके लिए संबंध महत्वपूर्ण होगा या साधन महत्वपूर्ण होगा? वो दूसरों के साथ जिएगा या सबको यूज करेगा, घर वालों सहित? बाहर वालों को नहीं, घर वालों को भी, एक दूसरे को भी। तो दोस्तों, कैरियर का मतलब इतना ही है कि सबको यूज करके मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। ये कैरियर अपने आप में बीमारी है। हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं शिविर में। 2 शब्द हैं, उनको तौल के देखिए। मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता। दोनों में क्या फर्क है? मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता, क्या फर्क है दोनों में? उपयोगिता शब्द चलता है ना, है ना? देखिए, एक बढ़िया सूत्र है। जब मैं सूत्र बोलता हूं तो जिस तरह से जड़ संसार में नियम है, ऐसे ही मानव के बारे में भी कोई नियम है, नेचर का नियम है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। और किसी आदमी का महत्व क्या है कि उसकी उपयोगिता क्या है। जब कोई आदमी खुश होता है तो क्या चीज पे खुश होता है? एक आदमी खुश होता है तो क्या चीज पे खुश होता है? सबको मेरी जरूरत है, या मैं हजारों लोगों की जरूरत हूं। और कोई आदमी निराश होता है तो किस बात पे निराश होता है? किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तो मैं कितने लोगों के लिए उपयोगी हूं, कितने लोगों के चेहरे पे मैं खुशी ला सकता हूं, कितने लोगों को मैं जिंदगी दे सकता हूं, चाहे मैं एज ए डॉक्टर करता हूं, चाहे मैं एज ए इंजीनियर करता हूं, है ना, चाहे मैं एज ए टीचर करता हूं। लेकिन जब भी मैं दूसरे की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लास्ट में क्या किया? लास्ट में चैरिटी किया। बिल गेट्स से लेके और तमाम जो भी बड़े एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देते हैं, यदि वो पैसे से खुश रहे होते तो उस पैसे को खुश रह के रोज सारे नोट निकालता, अलमारी से गिन के रोज रख देता। उसके पास इतने नोट थे कि वो सुबह से शाम तक गिनता तो भी खत्म नहीं होते। लेकिन कागज से आदमी खुश नहीं हो सकता। जब भी आदमी खुश होता है तो जिंदा आदमी के साथ जी के ही खुश होता है। किसी से अपनापन पाके खुश होता है, किसी को अपनापन दे के खुश होता है। जीना आदमी के साथ होता है, जीना अपने भाव के साथ होता है, जीना अपनी उपयोगिता के साथ होता है, जीना 24/7 होता है। तो दोस्तों, यदि इन 2 शब्दों को कंपेयर करें, मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क है? नहीं है? आप तो बहुत उदास हो गए। हाँ, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता। बोलिए, कोई बोल के बताइए, माइक दीजिए। मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता। मेरा कैरियर में सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं। हाँ, और अपनी उपयोगिता के लिए हम पूरे समाज के साथ सोचते हैं। तो मैं किस में ज्यादा प्रॉफिट में रहूंगा? हाँ, बेसिकली बहुत बढ़िया। जब मैं उपयोगिता की सोचता हूं, कैरियर उसमें इनबिल्ट है, कैरियर उसमें शामिल हो जाता है ना। जब मैं उपयोगिता की सोचता हूं तो मेरा कैनवस छोटा रहता है कि बड़ा हो जाता है? उस बड़े कैनवस पे परफॉर्म करने के लिए मेरी स्किल, मेरी योग्यता मुझको बढ़ाना होगा कि उतने से में काम चल जाएगा? दोस्तों, बड़े लोग ऐसे नहीं थे, उनकी हाइट 15 फुट थी। बड़े लोग हाइट से बड़े नहीं हुए, बड़े लोग 10 भाषाएं आने से बड़े नहीं हुए, बड़े लोग पैसा होने से बड़े नहीं हुए। जब भी कोई बड़ा हुआ,
किसी को बड़ा माना गया तो किस बात से बड़ा माना गया, वो कितने अधिक लोगों के लिए उपयोगी हो गया। तो ये कैरियर नाम की चीज, ये बीमारी हम माँ बाप ने अपने बच्चों को दी। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि हम माँ बाप के रूप में अपने बच्चे की जिंदगी में किस कदर जहर घोल रहे हैं, क्योंकि हमको भी पता नहीं है कि जहर हमने पिया था। है क्योंकि एक गांव है, एक कुएं से पानी पीते हैं, कुएं में भांग घुली है, तो सारा गांव कैसा पानी पीता है? भांग वाला पानी पीता है। और सभी झूमते हुए चलते हैं, और सभी ये मानते हैं कि चलने का तरीका ऐसा ही होता है। और दूसरे गांव जाके कभी देखा ही नहीं कि वो लोग सीधा चलते हैं। तो दोस्तों, कुएं में भांग घुली है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है। बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं, इसको माँ बाप अपनी सफलता मानते हैं। पैकेज 22 लाख का मिल गया, तुम्हारा क्या हुआ? बड़े खुश होके बताते ना दूसरे को, हमारे बच्चे को 22 लाख का पैकेज मिल गया है। उससे वापस पूछ दो तुम्हारा क्या हुआ, बच्चा तो चला गया। मैं कहता हूं यहां रहे अमेरिका रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम एक कमरे में रह के बहुत दूर हो सकते हैं, हजारों किलोमीटर रह के बहुत पास हो सकते हैं। मैं अक्सर चर्चा करता हूं, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बड़ा खुश रहता था। इस बात से खुश हो कि मेरे बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं। पढ़ेगा तो क्या करेगा? एक मेट्रो में जाके एक नौकरी करेगा, सारी जिंदगी एक फ्लैट बनाएगा, इतना ही करेगा। जो कि पहले से घर में मकान ज्यादा बड़ा था, कमरे ज्यादा थे, उसमें रहने वाले आदमी है नहीं, है ना। हम जिंदगी भर मकान ही बना रहे हैं। हम सबके पास मकान बना रहा और खाने के अलावा दूसरा धंधा नहीं है। तो दोस्तों, यदि दिल्ली की पूरी कहानी मैं आपको बताऊं तो दिल्ली की कहानी इतनी है, लगभग 85-90% लोगों की कहानी इतनी है, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। क्या क्या? पहले किराए का मकान था, अब मेरा मकान अपना हो गया। फिर 10 साल बाद मिलो तो बोले एक और हो गया है। फिर और 10 साल बाद मिलो, बोले एक और हो गया। और इस बीच में बच्चे कहाँ गए? वो चले गए हैं, तो झगड़ा हो गया, दिल्ली में ही अलग रहते हैं, है ना। जब मकान किराए का था तो सब साथ थे, जब मकान किराए का था तो जिंदगी साथ थी, जब मकान 3 हो गए तो जिंदगी चली गई। तो दोस्तों, ये आउटपुट आ रहा है हमारे सारे अच्छे इंटेंशंस के बावजूद। इसका मतलब है इस पे सोचने की आवश्यकता। ये जिंदगी की तरफ जाएगा, ये जीने की तरफ जाएगा कि जिंदा रहने की तरफ जाएगा? इसलिए अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि आज की सभा में कम से कम इतनी पैरिटी बन जाए। देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा पे निकलता है, यात्रा पे निकलता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? इसको एक तो उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, एक उसको अपना लक्ष्य पता हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ ये पता है, जाना कहाँ है ये पता है, और उसका प्रोसेस पता है। किसी भी यात्रा के लिए 3 चीज़ें होना आवश्यक है। मैं आज की डेट में कहाँ खड़ा हूँ ये पता हो, मैं विसनगर में हूँ और दिल्ली जाना है ना। जब आप फ़ोन पे, मोबाइल पे, गूगल पे डालते हो, डेस्टिनेशन डाल देते हो, वो पूछता है खड़े कहाँ हो, वो क्या बोलता है, वो शुरू वाला लोग, हाँ, योर लोकेशन, है ना। आप डेस्टिनेशन डाल दो तो बोलता है योर लोकेशन डालो, तो योर लोकेशन डाल दिया, डेस्टिनेशन नहीं डाला, बोले डेस्टिनेशन डालो, है ना। बीच का काम उसको आता है। तो जब तक मेरी लोकेशन पता नहीं है, जब तक डेस्टिनेशन पता नहीं है, जब तक उसका प्रोसेस पता नहीं है, तब तक काम नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि ये स्किल वाले पार्ट के लिए दूसरा आदमी सहयोग दे सकता है। मेरे शरीर में दर्द है तो मैं डॉक्टर का शाह साहब का सहयोग ले सकता हूँ, ठीक। मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मैं किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मन खराब है और पत्नी के साथ नहीं बन रही है, किसी और के साथ नहीं बन रही है, अब क्या करूं? और मन तो 24 घंटे मेरे साथ है ना, वो तो कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है। तो 24/7 मेरे मन में कुछ चलता ही रहता है, मेरे भाव में कुछ चलता ही रहता है। तो इसके लिए दूसरा व्यक्ति मेरे को हेल्प करेगा कि मेरे को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। तो मेरे शरीर के लिए और स्किल के लिए बाकी लोग सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता के लिए, अपने मनोभाव के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी स्टेट ऑफ माइंड के लिए, अपनी मानसिकता के लिए, अपने भीतर में होने वाले सुख दुख के लिए क्या होना होगा? मुझको तैयार होना होगा। ये मेरा काम है, मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी कुल अचीवमेंट क्या है? मेरे को खुश रहना आता है, मुझको खुश रहना आता है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फिर मेरे को खुश रहना आता है तो एक मकान भी ठीक हो, गाड़ी भी ठीक हो, है ना, वो बाद की बात है। मकान बहुत अच्छा है, मन ठीक नहीं है, चलेगा? मन बहुत अच्छा है, मकान थोड़ा कम भी रहेगा, किराए का भी रहेगा तो चलेगा। इसलिए मैंने कहा मकान किराए का हो, जिंदगी अपनी हो जाए, या मकान अपना हो जाए, जिंदगी किराए पे रह जाए। तो जिंदगी कोई अलग से चीज है ऐसी हमारी क्लैरिटी नहीं है। मकान अपना हो जाना ही जिंदगी है। एड्रेस ही गलत है। एक गाड़ी आ जाना ही जिंदगी है, इतना टर्नओवर हो जाना ही जिंदगी है। बच्चा आईआईटी में चला गया, इसी का नाम जिंदगी है। कई लोग तो वो रेस के घोड़े टाइप बच्चों को चला रहे। हाँ, आपके लिए आपका बच्चा रेस का घोड़ा है। कितने बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की कंडीशनिंग की वजह से वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, और बाद में जैसा वो खुद भी परेशान होते हैं, पूरा परिवार केओस में आता है। तो हम असुरक्षित माँ बाप हैं, किसी असुरक्षा से निकल के आए हैं, इसलिए सारे निर्णय असुरक्षावश लेते हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, तो मैं 2 भाग में उसको डिफ्रेंशिएट, जितनी बातें मैंने आपके सामने की हैं मैं उसको 2 भाग में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा ताकि एक हमारी क्लैरिटी बन जाए। तो 2 शब्द हैं, जिंदा रहना और जीना। ये 2 अलग अलग दुनिया है। अब देखते हैं जो आपने कहा था वो कितना सही निकलता है। खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे, उसका हिसाब किताब करेंगे। चलो, क्या फर्क है जिंदा रहने और जीने में? क्या सभी को कॉपियां दी हैं? क्या नोटपैड सबके पास हैं? क्या कितने लोगों के पास नोटपैड्स हैं? काफी लोग। ओहो, आप अपने लेके आए हो कि यहां से दिया गया है? क्या बात, क्या बात, जोरदार ताली। देखिए, एक ऐसा समाज जहां लोग इतने सिंसियरिटी के साथ में सुनने भी आए और अपना नोटपैड भी साथ में लेके आए, ये किसी समाज के लिए बहुत, हो सकता है आपको ही कितना, क्योंकि हम देश भर में, मैं लगभग साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ की भाषा से अपना पार नहीं पाता है ना, कड़कड़ 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 सब निकल जाता है उसी में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत, लगभग वेस्टर्न इंडिया, मध्य भारत, लगभग सभी जगह जाना होता है। कोई ऑडियंस अपने से नोटपैड लेके आए ऐसा मैंने देखा ही नहीं। बहुत शानदार, गुड। चलिए, तो लिख डालिए, जिंदा रहने और जीने में क्या अंतर है? 2 मिनट डिफरेंशिएट कीजिए कि जिंदा रहने और जीने में क्या अंतर है। करके देखें, 2-4 लाइनें लिख के देखें जिनके पास नोटपैड है। ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है?
अलग अलग है। माइक ले लीजिए, कुछ लोग बोलना चाहेंगे। जो लोग पहले शिविर किए हैं उनका चुप रहना ही उनका सहयोग है। हाँ जी, हाँ जी, नए लोग फ्रेश। जिंदा रहना और जीना एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग है, बोलिए। જિંદા જિંદા રહેના એટલે કે હાસ કરીને જીવવાનું, હાસ કરીને જીવવાનું એમ કે જીવા હે એમ, અને જિંદા એટલે કે ખુશી ખુશીથી જીવવાનું. जी जी। और हेलो हेलो। हेलो, मेरे खुद के विचार से जिंदा रहने का मतलब हेलो। है दो तरीके होते हैं। कोई लक्ष्य के साथ जीना वो जीना है, और जिंदा रहना तो बिना लक्ष्य जो रहता है वो जिंदा भी रह सकता है। बहुत बढ़िया, लक्ष्य के साथ बिना लक्ष्य के। हाँ जी। और नमस्कार। जिंदा रहना मीन्स सतत परिवर्तनशील होना। कोई हमने कोई नवा न्यू थिंग हो हमारे मन के अंदर, तो उसको सतत हमारे मन के अंदर उतारना। और जीना ऐसा है कि सब लोग एक सिस्टम से जीना चाहते हैं। जैसे आपने बोला अभी कि खाना पीना सोना फिर से खाना पीना, वैसा। लेकिन जिंदा रहना सतत परिवर्तनशील होता है। सतत उसके अंदर कुछ नया करने का ख्वाब होना चाहिए। ख्वाब इसे होना। जिंदा तो जिंदा ख्वाब के रहना। बिना ख्वाब के। यस। जी। और माइक आगे दीजिए। माइक माइक आ બોડીનું મેટાબોલિઝમ નિભાવવું એ જીવવું, અને જીવનની એક એક ક્ષણને માણવી એ જિંદા રહેવું. बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहने का भाव? हाँ जी, पीछे दीजिए। जिंदा रहना मतलब जो हम रूटीन काम करते हैं, खाया पिया सोया उठे सब किया। और जीना मतलब किसी लक्ष्य के साथ और समाज को हेल्पफुल होने का, किसी को हेल्पफुल होने का, मतलब कुछ लक्ष्य को साथ लेके चलने का, मेरे ख्याल से यही है। जी। मौत नहीं आती तो जीते हैं, इसको जिंदा रहना बोलते हैं। क्या? मौत नहीं आती इसी अच्छा। मौत नहीं आती तो जीते हैं, इसको जिंदा रहना बोलते हैं। और किसी को यूजफुल होके जिंदा जीते हैं, उसको जीना कहते हैं। जी हाँ। जीना मीन्स दूसरों के जीवन में हम हैप्पीनेस ला सके, सेटिस्फेक्शन ला सके, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसका ही आई थिंक उसकी ही डेफिनेशन जीना। और जिंदा रहना मीन्स मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी, मेरा जीवन अमूल्य, मेरी ज़िंदगी मेरी ही ज़िंदगी, मैं ऐसी तरह मीन्स इस तरह जीऊँ कि दूसरों के लिए प्रेरणा रूप बन सकूँ, दूसरों के लिए एक मोटिवेशनल रूप बन सकूँ। चलिए, काफ़ी सारी बातें आ गई, मैं उनको समराइज कर दूं। जो आपने कहा उसको एक तो ये कहा जा सकता है कि यदि मानव की बात करेंगे, जो मेटाबॉलिज्म की बात की, उसको ये बोल सकते हैं कि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार काम करने से इसको बोलते हैं कि फिजिकल लेवल की एक्टिविटीज हो रही। आहार, निद्रा, जीने की आशा, जीने की आशा में जो भी कमाना है, जो भी अर्निंग है, वो सब जीने ना, जिंदा रहने के कुछ पैसा चाहिए। और प्रजनन, ये चार चीज़ें हैं जिनको हम फिजिकल लेवल पे कम से कम बना रहे। ये काम पशु भी करता है कि हम ही करते हैं? पशु भी करता है। ये चारों काम पशु भी करता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु के साथ भी है। दूसरी बात करेंगे तो मानव में इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं जिसको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रंग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आंख, नाक, कान, जीवा, है ना।
5 सेंसेस की बात हम करते हैं। दूसरा है कि ये मानव में 5 सेंसेस हैं। इसको बोलचाल की बहुत स्टैंडर्ड जो वो है उसको बोलते हैं विषय। 4 विषय, 4 विषय और 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये मानव में भी है कि पशु में भी है? है, पशु में भी है। माइक 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 माइक। सब जीवों में सब इंद्रियों नहीं होती है। हाँ, सब नहीं होती। कितने में समझ 2-3 होती है। तो बेसिकली जो पशु पक्षी हैं, मैमल्स हैं, बराबर। यदि हम मैमल्स की बात करेंगे तो सभी में 5 इंद्रियां रहती हैं, है ना। तो ये इतना ऐसे ना, कुत्ता, भालू, शेर, गाय, 5 इंद्रियां पशु में भी रहती है, तो मैं पशु की बात कह सकता हूँ। ये ठीक हो गया। यदि यहाँ तक देखें, हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। मानव में भी 4 विषय हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, और पशु में भी ये दोनों चीजें मानव में भी हैं, पशु में भी हैं। मानव इनको जैसा यूज करता है, अब हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव, पशु भी जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? पशु भी जिंदा रहता है और मानव भी जिंदा रहता है। दोनों के जिंदा रहने में कोई अंतर है कि एक ही जैसा है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पशु जैसा इन दोनों को यूज करता है और मानव जैसा इन दोनों को यूज करता है, दोनों एक ही जैसा है कि दोनों में कोई अंतर है? क्वेश्चन क्लियर है ना? पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे। मानव में भी, पशु भी जिंदा रहता है, मानव भी जिंदा रहता है। मानव में भी आहार, निद्रा, भय और प्रजनन है, और पशु में भी 5 इंद्रियां हैं। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मानव का जिंदा रहना और पशु का जिंदा रहना एक ही टाइप का मामला है कि इसमें कोई अंतर है? क्या अंतर है? माइक ले लीजिए, माइक माइक। जो मानव है वो सोच सकता है, सोच सकता है कि भाई ये चीज़ मेरी नहीं है, मुझे नहीं, उसको टच नहीं करना चाहिए, ये जो भी है वो। और जो पशु है वो ऐसे सोच नहीं सकते। हाँ, तो कम से कम पशु को पता है कि उसको क्या खाना है, नहीं खाना है। नहीं पता है उसको। हम शादी में गए, हमको नहीं पता है कि हमको क्या खाना है, नहीं खाना है। हाँ, हमको पता है कि अगर पशु अगर जा रहा है और आगे, इसके आगे कुछ पड़ा है, कुछ घास चारा जो भी पड़ा है, किसी का भी हो, तो पशु को वो पता नहीं है कि उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वो खा लेता है, वो सोच नहीं सकता है कि मेरा है कि नहीं। अच्छा। जब भी मानव है तो वो सोच सकता है कि ये चीज मुझे करनी है या नहीं करनी है, मेरा नहीं है। अभी हमारी प्रॉब्लम पशु के साथ है कि हमारी प्रॉब्लम मानव से है? आपने अंतर की बात की तो मैं अभी अंतर बता रहा हूँ दोनों में। जो अंतर जो है कोई कि मानव डिफरेंटली सोच सकता है और पशु और सोच नहीं सकता। एक मिनट देखो, हजारों साल से हम इस धरती पे हैं। पशु अपने आहार को पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया? वो खाने में ओवर ईटिंग करता है? नहीं करता है। तो पशु को क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, पता है। मानव को शादियों में इतनी सारी वैरायटी क्यों रखी जाती है? क्योंकि इतने सारे लोगों का टेस्ट अलग हो सकता है। कोई आलू पसंद नहीं करता है, कोई कढ़ी पसंद नहीं करता है, कोई बैंगन पसंद नहीं करता है। तो सभी लोगों को अपने टेस्ट की चीज मिल जाए, इसलिए इतनी सारी वैरायटी रखी जाती है, क्योंकि सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होता। और हम लोग बाय नेचर समाज सेवी हैं। हमको लगता है ये इतनी मेहनत करके सारी चीजें बनाया है, जब तक मैं सारी नहीं चखूंगा तो सब में मुंह मार के, वो सामने वाला इतना मेहनत किया है, उसकी मेहनत का सम्मान भी तो करना मेरा फर्ज है। आप वो सारी वैरायटी आपके लिए नहीं बनाई थी।
तो ये मानव को पता चला कि नहीं चला? नहीं चला। कुछ लोग परेशान हैं कि उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन की कमी ना, वो कुपोषण। कुपोषण, कुछ लोग कुपोषण की वजह से प्रॉब्लम में हैं, कुछ लोग ओवर पोषण की वजह से प्रॉब्लम है ना। तो ये पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है। और कोई अंतर है? हाँ जी, चलो आपने जोड़ दिया, ऐसे मैंने बोला था पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे। लेकिन इसमें एक मेजर अंतर है जिसकी तरफ आपका ध्यान, हम सबका ध्यान चला जाए। देखिए पशु और मानव में अंतर कैसा है। पशु क्या करता है? पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है और आहार, निद्रा, भय, मैथुन पूर्वक जिंदा रहता है। ये पशु का स्टाइल है। सामान्यतः पशु गंध विधि से भोजन को पहचानते हैं। पशु सबसे ज्यादा नाक को यूज करता है, गंध को यूज करता है। कोई चीज खाने के लायक है तो नहीं खाने के लायक है तो सूंघ के देखता है। तो पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है, पांचों इंद्रियों से अपने आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के द्वारा अपने आप को जिंदा रखता है और बच्चे पैदा करते रहता है। ये पशु के जिंदा रहने का तरीका है। मानव के जिंदा रहने का तरीका ऐसे ही है कि इससे अलग है? मानव के जिंदा रहने का तरीका इससे अलग है। कैसा अलग है? मानव आहार, निद्रा, भय और प्रजनन में को यूज करके, इंद्रियों को तृप्त करके, वो इंद्रियों से तृप्त होना चाहता है, इंद्रियों से सुखी होना चाहता है। आप ध्यान दे लीजिए, मैं खाना खाता हूं ये सोच के जाता हूं कि जिंदा रहना है इसलिए खाना खाता हूं, कि खाना खाने में मजा आएगा इसलिए खाना खाता हूं। मैं जिंदा रहने के लिए खाना नहीं खाता, मुझको खाना खाने में स्वाद मिलता है, मैं इसलिए खाना खाता हूं। जिंदा रहना बाय प्रोडक्ट। कितने लोगों की सहमति है? ठीक, ये बात कम्युनिकेट हो पाई। तो बेसिकली पशु और मानव में एकदम ये उल्टा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पशु पांचों इंद्रियों को यूज करते हुए आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के द्वारा जिंदा रहते हैं और अपने वंश को बनाए रखते हैं। ये ठीक हो गया? मानव आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के माध्यम से पांचों इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जिंदा रहता है। ये इंद्रियों को, ये चार विषय को यूज करता है ताकि इंद्रियों से तृप्ति मिले। पशु पांच इंद्रियों को यूज करता है ताकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन से जिंदा रहे। ये बात पहुंच पाई? मैं कह पाया? एक बार हाथ। ठीक हो गया? ये अंतर क्यों है? ऐसा अंतर मानव और पशु में ऐसा अंतर क्यों है? हाँ, माइक दीजिए, बढ़िया बोल रहे हैं। એટલી વિચારવાની શક્તિ આપી નથી ભગવાને, અને મનુષ્યને બુદ્ધિ આપી છે એટલા માટે એની બનું એટલું અંતર રહેશે। तो बेसिकली जिसको आप बुद्धि बोल रहे हैं उसको मैं दूसरी भाषा में कहूं कि मानव में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है जो पशु के पास नहीं है। ये दो चीजें मानव में हैं, कल्पनाशीलता मानव में है। इसका मतलब क्या हुआ? पशु में नहीं है, ऐसा बोल रहे। क्या मतलब हुआ? आप शेर को जंगल का राजा बोलते रहे पर वो बेचारा बेघर होता है। उसको इतने साल में कभी अक्ल नहीं आई कि अपना घर बना ले। ठीक, जैसे मानव में वो मानव 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और कभी उसका बिस्तर इधर रख दिया, कभी बेड उधर बदल दिया, कभी कमरे के पर्दे बदल दिए। हम कुछ कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन एक पक्षी हजारों साल से जैसा घोंसला बनाता है वो वैसा ही घोंसला आज तक बनाता है, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करता है। वो उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK टाइप कुछ नहीं करता है।
इसका मतलब ये हुआ कि मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जैसी मानव में है, ऐसी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता पशु के पास नहीं है। हर पशु शाकाहारी है, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। शाकाहारी शाकाहारी ही खा सकता है, मांसाहारी मांसाहारी ही खा सकता है। और मानव, आप किसी के घर गए और उसको लगे कि अच्छा नाश्ता आ गया है, ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे बाहर के लोगों को वहाँ जाना, अफ्रीका में ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, कोई लोग मेरे को बता रहे थे कि कोई बाहर का वहाँ जा ही नहीं सकता क्योंकि वो जाने से उसका नाश्ता कर लेते हैं। ऐसे भी ना ट्राइबल्स। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। तो मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, तो मानव का काम केवल सुख से चल जाता है? केवल इससे नहीं चलता है। मानव की बहुत बड़ी जरूरत है उसकी पहचान। उसका सम्मान, आइडेंटिटी, है ना? क्या बोलते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? गरीब से गरीब आदमी भी बोलता है बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। कोई नहीं बोलता है कि अपमान की 2 रोटी चाहिए, कितना भी अपमान कर लो पैसा ले दो, ऐसा नहीं बोलता है। तो मानव का बहुत बड़ी, जितनी मानव की खाने पीने की जरूरत है उससे ज़्यादा बड़ी जरूरत उसके सम्मान की है ना? जहाँ भी उसका, चाहे अपनों ने किया, यदि उसका सम्मान नहीं किया तो वो अपनों को छोड़ देता है। तो मानव की दूसरी बड़ी जरूरत है उसकी पहचान, उसका सम्मान। अभी हमारा पहचान और सम्मान का तरीका कैसा है? अभी सम्मान और पहचान के लिए हम क्या करते हैं? है? अभी हमारे पास पहचान और सम्मान के 4 तरीके हैं। रूप, है ना? देखो मैं कैसे लगता हूं, जैसे 2 भाषा बनाता हूं। तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छी लग रही हो, पर तुम अच्छी हो नहीं। तो तुम अच्छे लग रहे हो ये किसको बोल रहे हैं? अपीयरेंस, है ना? मेरी शक्ल, मेरे कपड़े, मेरा ओढ़ना पहनावा। तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो। तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो ये किसको बोल रहे हैं? नेचर, आचरण, आचरण। तो हम तो पहली लाइन सुन के इतने खुश हो जाते हैं, दूसरी के बारे में सोचते ही नहीं। तुम अच्छी लग रही हो, बस उसके बाद तो सुनना बंद हो गया। तो तुम अच्छे लग रहे हो, इससे काम चलेगा कि तुम अच्छे हो, इससे काम चलेगा। तो अच्छे लगे भी और अच्छे हों भी, आवश्यकता इस बात की है ना? लेकिन अभी हमारा ज़्यादा ध्यान किस बात पे है? हमारा ध्यान अच्छा लगने पे है कि अच्छा होने पे है? जोर से बोलो। अभी हमारा ज़्यादा ध्यान अच्छा दिखने पे है। 24 घंटे मेरा ज़्यादा ध्यान अच्छा दिखने के लिए बना रहता है कि मैं अच्छा हो जाऊं। है? वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि हमारा, अब मैं आपके लिए बोलूंगा तो आप ईमानदारी से आंसर दोगे, इसमें थोड़ा सा शंका है। जनरल पूछते हैं, जनरल। आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूं ना, आप तो जितने लोग हॉल में आते हैं सब अच्छे ही होते हैं। वो नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो पहले से ही कुछ अच्छे होते हैं इसलिए हॉल में आते हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से? इस बात से कोई असहमत हो उसके पास गुंजाइश ही नहीं। हाँ जी, संसार में इन जनरल देखें तो कितने प्रतिशत लोग अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं? उसकी संख्या
99%। अच्छा दिखने के प्रयास की संख्या 99%। कितने लोग सहमत इस बात से? हम अच्छा दिखने के लिए प्रयासरत हैं। मेरा घर कैसे अच्छा दिखे, मेरा मोबाइल कैसे अच्छा दिखे, मेरे कपड़े भी अच्छे दिखे, मेरी शक्ल भी अच्छी दिखे, सब अच्छा दिखे, पैकिंग ठीक ठाक हो, पैकिंग ठीक हो, मटेरियल है ना। तो कितने प्रतिशत लोग हैं समाज में जो अपना जितना ध्यान लोगों का अच्छे दिखने के प्रति है, कितने प्रतिशत लोगों का ध्यान अच्छा होने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं? इसकी प्रतिशत कितनी होगी? अच्छा होने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, इसकी प्रतिशत कितनी होगी? प्रतिशत है जितने आए हैं उनको छोड़ के बाकी कोई ऐसा नहीं। मैं सही समझा ना? तो दोस्तों, रूप, बल, धन और पद, ये चार चीजें हैं जिनसे हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, पैकिंग बेहतर हो जाए ऐसी हम कोशिश करते हैं। कभी रूप से हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, कभी बल से, है ना, शरीर कैसा दिखता है पूरा ना, कभी शक्ल की बात है कि मैं अच्छा दिखूं, कभी पूरा शरीर से हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, है ना, पैसे से हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, पद से हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। ये चार तरीके हैं जिनसे हम अपनी पहचान चाहते हैं, हम अपनी पहचान जोड़ते हैं, अपना सम्मान जोड़ते हैं। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब रूप की बात करते हैं तो सारे रूप उसमें जुड़ गए, मोबाइल से लेके, कार से लेके, मकान से लेके, कपड़े से लेके। जब बल की बात करते हैं तो शरीर बल की बात मुख्य रूप से आ रही है, धन की बात, है ना। एक बीच में एक दौर आया था जब आईआईटी वालों को जॉब नहीं मिलता था, आईआईटी इंजीनियरिंग जो करते थे, एक दौर था जब सिविल वालों को जॉब नहीं मिलता था। तो जिस काम से पैसा नहीं मिले उस काम के साथ सम्मान खत्म हो जाता है। तो स्किल का सम्मान है कि पैसे का सम्मान है? पैसे का सम्मान है, स्किल का सम्मान नहीं हुआ। और पद की बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हम पहचान और सम्मान कैसा चाहते हैं? वो स्थायी हो कि अस्थायी हो? पहचान और सम्मान हम कैसा चाहते हैं? स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो ऐसा बोल रहे? चलिए स्थायी है ऐसा बोल रहे। रूप बल धन पद का नेचर कैसा है? स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है। रूप बल धन पद शरीर जैसा कल है आज वैसा नहीं है, है ना। किसी ने अपने बाल काले कर रखे हों, दूसरों को पता चले ना चले उसको तो पता रहता ही है। आजकल सभा में सफेद बाल वाले कम दिखते, तो ऐसा नहीं है कि होते नहीं, दिखते नहीं। तो दोस्तों समस्या ये है, अब देखिए ठीक से देखिए, हम बोलते समय अच्छी बातें बोलते हैं। जैसे मैंने पूछा कि खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे, तो क्या बोला सबने? जीने के लिए खा रहे। इससे ये सिद्ध होता है भाई खाने के लिए तो हम नहीं जी रहे। और मैंने स्पेसिफिकली हाथ उठवाया कि खाने के लिए कितने लोग जी रहे, तो किसी ने हाथ उठाया नहीं। ठीक, तो हम जीने के लिए खा रहे, तो ये हम अपनी क्वालिटी को तो बेहतर रखना ही चाहते हैं, अपनी क्वालिटी को बेहतर बोलना ही चाहते हैं। लेकिन फाइनली आप देखोगे तो क्या दिखाई देता है कि रूप बल धन पद अपने आप में इसकी नेचर ही अस्थायी है। शरीर आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, धन कम ज़्यादा जिंदगी में होता रहेगा, पद कम ज़्यादा होता रहेगा, एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, है ना। जो लाल किला चलाता था वो भी आज नहीं रहा, है ना। तो चीज़ें बदल जाएंगी वक्त के साथ साथ, बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल गईं। दोस्तों हर मानव ये सोच के जीता है कि वो कभी नहीं मरेगा। ये एक जनरल परसेप्शन है। जितने भी लोगों ने जिंदगी में बड़े काम किए,
ऐसा कहा जाता है कि उनको हमेशा मौत याद रहती है। जिनको मौत हमेशा याद रह सकी वो जिंदगी जी पाए। क्योंकि उसको पता नहीं यार ज़्यादा दिन का मामला नहीं है, तो मेरे पास एक निश्चित अवधि है, उस निश्चित अवधि में उस निश्चित टाइम में मैं क्या कर डालूं या मैं क्या है ना कैसा जीऊं। तो दोस्तों, पहचान मैं चाहता हूं स्थायी, और उसके माध्यम कैसे हैं? तो जिंदगी भर क्या कोशिश करता हूं, जिंदगी भर क्या कोशिश करता हूं? बात पहुंच रही कि नहीं? पीछे तक। जिंदगी भर क्या कोशिश करता हूं? जो चीजें अपने आप में परिवर्तनशील हैं, अस्थायी हैं, उनसे मैं मेरी जिंदगी का स्थायित्व पाना चाहता हूं। होगा? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। और कितने प्रतिशत लोग इस प्रयास में लगे हैं? कितने प्रतिशत लोग इस प्रयास में लगे हैं? हॉल वालों को छोड़ के। तो दोस्तों, इसमें 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। ऐसा जीने से 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। एक, जिसको बोला भूतकाल की पीड़ा। दूसरा, वर्तमान से विरोध। तीसरा, भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता। तो 3 फ्री गिफ्ट मिला। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। कितने प्रतिशत लोग होंगे समाज में जिनमें उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता बढ़ती है? उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती है। ऐसा कितने प्रतिशत लोगों की जिंदगी में होता होगा? है? कितना? कितने प्रतिशत होगा ये? है? इन्होंने भी मार दिया छक्का, बोले आपको छोड़ के। देखा, ऐसे जवाब आता है। तो काफी अच्छी संभावनाएं हैं विसनगर में। यहां मैं ज्यादा दिन नहीं आऊंगा, मेरे को दिख रहा है। कई लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर मेरे आने की जरूरत क्या रहेगी। दोस्तों, बहुत सुखद है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी की जिंदगी जैसा हम जी रहे हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे मैं कहूं कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? जोर से बोलो। हाँ, है ना, वैसे ही है, जय माता दी टाइप। तो हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? अपनों से ज्यादा पाया। रोड चलता आदमी दुख थोड़ी देता है। जिसके साथ आपका संबंध है उसमें अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, वहीं दुख पाते हैं। तो आप अपनों को दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? आप अपनों को सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? सुख देना चाहते हैं। और आपके वो भी यहाँ बैठे होते जिन्होंने आपको दुख दिया है, और मैं उनसे पूछ रहा होता कि आप अपनों को दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो, तो वो क्या बोल रहे होते? सुख देना चाहते। तो लॉजिकली इतना तो समझ में आ गया, हम भी अपनों को दुख देना नहीं चाहते हैं, हमारे अपने भी हमको दुख देना नहीं चाहते। इतना भी भरोसा हो जाए। अभी तो हम क्या बोलते हैं? अभी तो हम ये मानते हैं कि दूसरा योजनाबद्ध तरीके से मेरे को दुख देता है, मेरे को दुख देने की योजनाएं ही बनाता है,
बच्चे को लगता है ये माँ बाप मेरे को दुखी करते हैं, है ना। सास बहू को, खैर यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, है ना। सास बहू के सीरियल ये ऐसी थोड़ी बने होंगे। तो जितना भी सारा गेम है, तो इसका मतलब ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ में आ रहा है कि हमारी चाहनाएं और हमारी योग्यता दोनों के बीच में गैप है कि दोनों मैच करता है? गैप है। मेरी चाहना है कि मेरे को बहुत अच्छा घर बनाना आ जाए, बहुत अच्छी खेती करनी आ जाए, लेकिन योग्यता नहीं है तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मेरी चाहना शुरुआत करने के लिए एक आवश्यकता है, लेकिन मेरा चल पाना, उन चाहनाओं का पूरा हो पाना योग्यता पे निर्भर करता है। चाहने से जिंदगी नहीं चलती है। दोस्तों, अभी तो प्रॉब्लम यह है कि मेरी चाहनाएं भी बहुत स्पष्ट नहीं है। जैसे मैं सम्मान चाहता हूं, लेकिन सम्मान की क्लैरिटी नहीं है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो गलत तरीके से सम्मान चाहते हैं? रूप, बल, धन, पद से पहचान, मिलने वाली पहचान स्थायी होगी कि अस्थायी होगी, है ना। और इसका मतलब है कि यह पहचान का आधार नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पहचान का आधार कोई अस्थायी चीज होगी कि स्थायी चीज होगी? कोई स्थायी चीज होगी। यदि पहचान स्थायी रूप, यदि पहचान की आवश्यकता स्थायी है, परमानेंट है, तो उसका आधार भी कैसा होगा? परमानेंट होगा। और ये तो परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है हमारी चाहनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी योग्यता, हमारी उसकी क्लैरिटी। इसलिए मैं कह रहा था कि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है। आप 24 घंटे क्यों ना मेहनत करें, तो हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। हार्ड वर्क से काम नहीं बनने वाला है ना। स्मार्ट वर्क से कोई काम बनेगा, समझने से कोई काम बनेगा। यदि क्लैरिटी नहीं है तो हार्ड वर्क कितना भी करूं, बिना क्लैरिटी के, बिना विजन के, हार्ड वर्क लेबर है, मजदूरी है। तो क्या आप मजदूरी करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि इसको सोचने की जरूरत है। तो इस पूरे फ्रेम में, जिंदा रहने के फ्रेम की कहानी इतनी है। तो मैं आहार निद्रा, शरीर से आहार निद्रा, भय और प्रजनन करता हूँ, इंद्रियों से सुख लेने की कोशिश करता हूँ, रूप, बल, धन, पद बढ़ा के अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, सम्मान पाना चाहता हूँ। सामने वाला देता नहीं है, तो भूतकाल की उसने, है ना, किसी के घर गए, उसने आपको ठीक से रिसीव नहीं किया, आज के बाद उसके घर नहीं जाना है। ठीक। तो भूतकाल की पीड़ा, कहाँ भूतकाल की पीड़ा पाई है, कहाँ उसका प्रभाव आज भी मेरी जिंदगी में बना हुआ है, और कितना सारा भविष्य का विरोध पैदा हुआ है। ये जिंदा रहने की कहानी है। थोड़ी सी जीने की कहानी देख लेते हैं। फिर जीना किसको बोलेंगे? आपने कहा लक्ष्य के साथ, आपने कहा समस्याएं नहीं हो, खुशी हो। चलो जीने को समझ लेते हैं। जीना किसके साथ होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं, दुख के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? अभाव के साथ, गरीबी के साथ जीना होता है कि झेलना होता है? असुरक्षा के साथ, अनिश्चितता के साथ जीना होता है कि झेलना होता है? तो ये समझ में आ गया कि नेगेटिविटी के साथ जीना होता है कि झेलना होता है। तो जीना फिर किसके साथ होता है? जीना किसके साथ होता है? जीना किसके साथ होता है? पॉजिटिविटी के साथ जीना होता है। तो उसको मैं कहूंगा कि भाई स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमने बहुत बात की सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान। बोलते समय हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, लेकिन वाकई में क्या उसको, जैसे हम सम्मान चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, पर क्या हम पहचान को समझते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी पहचान, अपना सम्मान अपनों के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई देता है या घटता हुआ दिखाई देता है?
उम्र बढ़ने के साथ में साथ साथ अपनों की संख्या और उनका अपनापन, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या और उनका अपनापन घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। घटता हुआ दिखाई देता है। तो यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या घटती गई, उनका अपनापन घटता गया, बचपन में कितने रिश्तेदारियों में जाते थे, आज कितने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं? बचपन में अपने बच्चों को किसी के यहाँ, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ कितना छोड़ते थे, आज ना कोई हमारे यहाँ अपने बच्चे छोड़ता है, ना हम किसी के यहाँ अपने बच्चे छोड़ना चाहते हैं। कजिन ब्रदर सिस्टर के बीच में विश्वास 20 साल 30 साल पहले कितना था, आज बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? यदि हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमारा ये ध्यान जाता है, ये विश्वास हम चाहते तो हैं, लेकिन इस विश्वास की क्लैरिटी हमको नहीं है, इसलिए कोई ठोस बात हो नहीं रही है। एक मकान बनाते हैं तो एक चीज का हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज नापतोल है। एक फैन लगाते हैं तो उसमें कितना वोल्टेज, कितना करंट, कितना, है ना, एक चीज का स्पेसिफिकेशन हमारे पास है। जिंदगी में खुशियों की तलाश है, जिंदगी में कॉन्फिडेंस की तलाश है, संबंध में तृप्ति की तलाश है, उसका कोई स्पेसिफिकेशन, कोई क्लैरिटी, कोई बहुत ठोस मामला हमारे पास नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि बस एसी लग जाएगा बाकी सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी में एसी लग जाए, घर में एसी लग जाए, बस और क्या चाहिए। बहुत मोटी जिंदगी जी रहे। दोस्तों, अच्छी बात यह है, देखिए एक समय मेरे को लगता है कि यहाँ काफ़ी लोग वो बैठे हैं कि एक समय वो था जब कार में एसी होता है, ऐसा अधिकांश लोग नहीं मानते थे। कितने लोग हैं? कार में एसी कंपल्सरी आइटम नहीं थी, है ना। वो टीन का टपरा गर्मी के समय में कार में बैठ के और कपड़ा लपेट के है ना, हमने खूब वो दिन देखे। आज बिना एसी की कार ही नहीं आती। ये चेंज हमने देखा। घरों में सबके यहाँ एसी होता है, ऐसा चलन ही नहीं था। धीरे धीरे सरकते हुए अब काफ़ी आम बात होने लगी। तो इसका मतलब है कि समय के साथ साथ जो चीज़ें कल तक, है ना, बहुत ऐसा हम मान रहे थे कि दूर हैं, वो हमारे बहुत नज़दीक आ गई। इसका ये फ़ायदा हुआ कि जिन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को हमने बहुत बड़ा मान रखा था, उनकी औकात समझ में आ गई। ये बात ध्यान में आई? मेरे को नहीं पता आपको ध्यान है कि नहीं, राष्ट्रपति भवन में एम्बेसडर गाड़ी लगती थी और उसका ISZ इसुजू इंजन केवल राष्ट्रपति भवन की गाड़ियों में लगता था। एक अच्छा इंजन होगा, वो आम आदमी को उपलब्ध ही नहीं था। फिर ये दौर आया नई गाड़ियों का, कहाँ गई एम्बेसडर और कहाँ गया वो इंजन जो कल तक स्टेटस सिंबल था, वो सबके लिए उपलब्ध हो गया। आप कल्पना कीजिए कि मोबाइल शहर के 10 लोगों की जेब में होता तो मोबाइल का स्टेटस क्या होता। आज मोबाइल हर आदमी की जेब में है तो कैसा हो गया? कॉमन हो गया। तो जो चीज़ सबके पास आ जाती है वो कॉमन हो जाती है, उसको लेके जो ओवर इवैल्यूएशन हमारे मन में होता है वो भी नॉर्मल। एक समय में इंजीनियर कैसा होता था हमारे बचपन में? इंजीनियर मतलब पता नहीं क्या होता है। अब इंजीनियर मतलब सिंपल ग्रेजुएशन है भाई, इसमें क्या खाता। अब सिंपल, अब इंजीनियरिंग मतलब सिंपल ग्रेजुएशन है। तो दोस्तों, बड़ी घटना ये घटी है कि कल तक हमने जिन चीज़ों को बहुत बड़ा माना था, इन 40 साल में वो हमको उपलब्ध हो गई। उनके उपलब्ध होने के बाद भी जिंदगी नहीं मिली है, इसलिए हम 2 कदम और आगे निकल आए हैं। इसका मतलब यहाँ जिंदगी नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात पहुंच रही है ना? जिंदगी में एक बढ़िया सूत्र है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा का मतलब है अधूरेपन को पहचान लेना। जिंदगी में बहुत सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट हमने मानी हुई है। तो वो जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा मानी हुई है वो भूत उतर जाए, है ना, और मैं नॉर्मल हो जाऊं। यार ये पैसा और पद ये पहचान का आधार नहीं है। ये समझ में आए बिना आदमी का साइज आपको पता ही नहीं चलता।
अभी आदमी का साइज नहीं है, पद और पैसे का साइज है। आदमी की हैसियत हमने देखी नहीं है, आदमी की हैसियत हमारे बीच में नहीं है। देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल है। आपको अपने बच्चे को बताना हो कि इंजीनियर कैसा होता है, डॉक्टर कैसा होता है, तो आप क्या करोगे? या तो आपके घर में ही मिल जाएगा या पड़ोस में मिल जाएगा। आपको अपने बच्चे को बताना हो कि देखो अच्छा आदमी ऐसा होता है, उसके लिए क्या करोगे? है उसके लिए गांधी जी का चैप्टर निकालना पड़ेगा। तो अच्छे आदमी की हमारा ये क्यों ये बात हो गई कि बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा आईएएस बनना चाहता है, आजकल तो सेलिब्रिटी सभी बनना चाहते हैं, ये नया शौक चढ़ा है ना। तो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, बढ़िया बढ़िया इंसान बनना चाहे, तो दिल्ली में एक चर्चा शुरू किया कि बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है। तो दिल्ली वाले बोले जी बड़ा ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों क्या फर्क है बड़ा आदमी और बढ़िया आदमी? उसमें बहुत हाँ आईएएस अचीवमेंट, हाईएस्ट अचीवमेंट। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अचीवमेंट किसको बोले? अच्छा, और सब किस बात पे बोलेंगे अभी? हो उसको कौन पहचानता है? सबसे पहले जब घर में बच्चा, हमारे यहाँ तो देश में एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है, घर में सन्यासी आएगा तो घर वाले उसको साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि मेरा बच्चा इसके पीछे मत चला जाए। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता प्रणाम क्यों करते हो? आप उसको प्रणाम भी करते हो और मेरा बच्चा उस रास्ते पे मत चला जाए इसको भी सुनिश्चित करते हो। ये दोहरापन क्यों? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों? इसका मतलब है वो सन्यासी भी स्टेटस सिंबल है, वो जिंदगी नहीं है। या उससे हमको किसी आशीर्वाद की अपेक्षा है कि मेरे जितने बिगड़े काम हैं वो इसके आशीर्वाद से सफल हो जाएं। करना तो मेरे को यही है। तो दोस्तों ये स्वयं के प्रति विश्वास कोई अलग तरह की चीज है, इसकी क्लैरिटी हमको नहीं बनी। इसलिए दिल्ली में लड़का 10 साल रह के आईएएस के लिए मेहनत करे, असफल होके घर वापस आ जाए तो घर वाले परेशान नहीं होते, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन बच्चा बोले कि मैं किसी आश्रम में जा रहा हूं 1 साल के लिए, तो घर में बवाल मच जाएगा। तो वो गलत नहीं है। घर वाले आईएएस बनने से क्या उपलब्धि होती है वो उनको पता है, किसी आश्रम में जाने से क्या उपलब्धि होगी उसके बारे में वो शंका है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अचीवर सभी होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग अचीवर हों? अचीवर तो सभी होना चाहते हैं। तो सभी अचीवर हो सकते हैं कि आज के डिजाइन में इस समाज में इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह मेडिकल कॉलेज को भी खोल दिया जाए तो मेडिकल कॉलेज भी सिंपल ग्रेजुएशन हो जाएगा 10 साल 20 साल के अंदर। उसको हमने रोक के रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सभी आईएएस नहीं हो सकते, सभी इंजीनियर नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, होके अचीवर नहीं हो सकते। सभी अचीवर होंगे तो किस आधार पे होंगे? दूसरे उसको अचीवर बोले कि वो अपने में कुछ होगा। तो यहां से मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा स्वयं के प्रति विश्वास को। तो स्वयं के प्रति विश्वास जो है, ये जो स्वयं में विश्वास है, ये 2 तरीके का है। एक विश्वास वो है जो मेरे को मेरी स्किल को लेके है, दूसरा विश्वास वो है जो मेरे को मेरी समझ को लेके है। और समझ मतलब है जो मेरा भाव है उसको लेके है। जैसे गाना गाना स्किल है कि समझ है? एज ए डॉक्टर ऑपरेशन कर देना स्किल है कि समझ है?
एज ए इंजीनियर पुल डिजाइन कर देना स्किल है कि समझ है? एज ए टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देना स्किल है कि समझ है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? ये स्किल है, फिर समझ क्या है? तो मेरे को कम से कम इस बात का